हैं आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ। हम लोग दल नहीं बदलते हैं क्यों प्रदीप जी? पलटू राव नहीं, हम लोग दल नहीं बदलते हैं, हम लोग इधर से उधर नहीं जाते, हम जहां पर हैं वहीं पर हैं, विराजमान वहीं पर खड़े हैं जी। और साथ में झंडा है, यार ये देख लीजिए बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव। प्रदीप जी, तो नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बने बिल्कुल बिल्कुल बिहार के। यस यस। और अभी प्रशांत, क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर जी। यस यस। प्रशांत किशोर जी जिस प्रकार बोल रहे थे 18 साल से वो क्या है, वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए किया क्या है? आज भी जो बिहार का बच्चा है वो इधर से उधर भटक रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, कहीं और जा रहा है, मतलब क्या है ये? सर आई वाज फैसिनेटेड बाय व्हाट प्रशांत किशोर सेड। बोले कि आप बिहार में किसी को भी वोट दो, बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ, हाउ डज ही मैनेज दैट? किसी को भी वोट दो, बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये तो यार मतलब जादूगर है, ये कैसे बन गए? Nobody can do anything without Nitish Kumar. There's a deadlock on the basis of the voting polarization of each party. Yes. And everybody has reached a saturated level. And till such time when Nitish Kumar agrees, a government does not get formed. Yes. Which is amazing. And the BJP and the RJD, Lalu Yadav can never come together. You know, when they come together, can you imagine a scenario? I know it won't happen. But can you just imagine, just think about it. It's so delicious. The thought itself is so delicious. It is so tempting. It is so evil. Suppose the BJP and Lalu Yadav's RJD come together. Mr. Nitish Kumar is finished. That's it. Matter is over. But then it's like talking whether the BJP and Congress will come together. I mean, will that ever happen? I don't know. Congress and BJP might come together because the whole Congress at some point of time, I think the whole Congress will be in the BJP. मुझको ऐसा लग रहा है जिस तरीके से होड़ लगी हुई है कि कौन अगला बंदा बीजेपी में जाएगा, कौन बीजेपी में जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको सारे कांग्रेस के चेहरे दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द। लेकिन एक चीज तो हो गई है प्रदीप जी, अब इंडिया अलायंस की मतलब का तो क्रियाक्रम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? Miracles happen, but miracles will not happen the way things are. I mean, if you are working towards it, if you work towards the goal, like Maradona running with the ball towards the goal, and then the hand comes and then it goes in. But if you're not even running towards the goal, how are you going to score the goal? In fact, even God's hand cannot come and push the goal in. In fact, you don't even have the ball. You're probably running in the opposite direction. And there is one particular theory which believes you're not even on the football field. Forget about having the ball or running towards the other goal. I'm not sure what Rahul Gandhi is up to right now. As you've been rightly saying, you got how much? 2 months now? 2 or 3 months? Yes, maximum. 2 months maximum. And 3 months, you have to go from 53 to 274. You have to be 272 plus. 272 plus. That's it. So, it should be seen, I mean, the whole country should be in fire to see that Congress should come, and Rahul Gandhi will be the Prime Minister. Are we seeing the same wave of 2013? Where we saw Narendra Modi, where everybody just wanted Mr. Modi. Yes. And then, even then, I think probably he couldn't cross 300. So in the second term, he crossed 300. In the second term, he crossed. Yes. So he was on 270 or 280 or whatever. He just simple majority crossed. Amazingly enough, we've got both Lakshman Saoji and Sanjay Thakur साहब दोनों हैं इस वक्त हमारे साथ। कमाल है। Can we see it please? Can we go to Lakshman Saoji and Sanjay Thakur साहब दोनों के दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। जय सिया राम सर, जय सिया राम। क्या बात है, आज तो मजा आ गया। क्या हुआ? अरे सर आप लोगों ने कहा लक्ष्मण जी का नेटवर्क नहीं मिल रहा है, बढ़िया मैं आ गया, दोनों भाई मिल गए। अरे सर कमाल है। लक्ष्मण साहब साहब आप अयोध्या में हैं, जय सिया राम। लक्ष्मण सौजी साहब अयोध्या में हैं इस वक्त, कमाल है सर, कमाल है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और मैं आपको बताऊं संजय ठाकुर साहब, लक्ष्मण सौजी साहब ने वादा किया था कि जब मैं अयोध्या में हूंगा मैं अयोध्या से ज्वाइन करूंगा जरूर, बोला था इन्होंने। अपना वादा निभाया साहब आपने। भाजपा वाले वादा पूरा करते हैं। हाँ ये भी ठीक है। ये भगवान राम की कृपा है कि उनका नेटवर्क भी सही हो गया, नहीं तो नेटवर्क भी ठीक हो गया। आप भी तैयार हो गए थे और तुरंत भगवान राम ने कहा कि नहीं साउदी साहब भी रहेंगे। साउदी साहब ये बताएं, वहां माहौल बताएं,
अयोध्या का माहौल बताएं जरा अच्छी तरीके से, संजय ठाकुर जी भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। माहौल तो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, कोई खुशी फुला नहीं समाती है, इतना इतना बड़ा माहौल है। जी पूरे देश और विदेश से रामलला का दर्शन करने लोग आते हैं, और जो आते हैं इतने मन भावन आते हैं, तो कोई कोई खुशी का कोई उसका सीमा नहीं है उसकी। जी, और आपके अपने दिल में क्या चल रहा है ये बताएं, क्योंकि मुझे मालूम है पिछले ना जाने कितने सालों से संघ के द्वारा और बाकी अन्य संगठनों के द्वारा और ऑफ कोर्स बीजेपी में, लेकिन पहले आप संघ के कार्यकर्ता हैं, बाकी कुछ और बाद में है। लक्ष्मण साहू जी साहब, आपके खुद के जहन में क्या चल रहा है इस वक्त? आप रामलला की नगरी में हैं, श्री राम की नगरी में। यार आई फील जेलस ऑफ यू सर, मुझे ईर्ष्या हो रही है सर आपसे, मुझे ईर्ष्या हो रही है। मैं आ रहा हूं वहां पे, बाकी सब छोड़ छाड़ के मैं कल ही जा रहा हूं। जी बताएं सर। आइए आइए, हम मिलेंगे। जी जी बताएं, आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, वो बताएं हमारे दर्शकों को सर प्लीज। सर बहुत दिन का, बहुत सालों का भारतवासियों का सपना पूरा हुआ है, इसकी खुशी बहुत अलग। क्योंकि बात ऐसी है कि जो हमारी अस्मिता टूट चुकने के कगार पर थी, तो उसके बावजूद अभी जो हुई है उसकी खुशी ज्यादा है जी। क्योंकि रामलला की जो महती है रामायण की, राम जी की, वो हमारे भारतवर्ष को एक रखने के लिए बहुत काम आती है। पहले से राम जी का जो प्रवास था अयोध्या से लेकर लंका तक, ये पूरे भारत की सीमाएं, पूरा भारत का भूभाग, अभी पूरे भारत के सब प्रांतों से लोग और भारत के बाहर से लोग जब आते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का दर्शन अयोध्या में अभी होता है जी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमको एक सूत्र में बांधने की जो संस्कृति हमारी है, जो विरासत है जी, जिसकी याद दिलाना पड़ता था, वो अभी लोग खुद होकर उसमें शामिल होते हैं। क्या बात है सर, जबरदस्त। एंड एट द मोमेंट वी आर सो लकी टू हैव बोथ संजय ठाकुर साहब एंड लक्ष्मण साहू जी साहब बोथ। संजय ठाकुर साहब इज इन मुंबई, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ही माइट बी इन लंडन ऑल्सो, आई डोंट नो। हो सकता है लंदन में एक नया राम मंदिर बना रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है संजय ठाकुर साहब के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। और लक्ष्मण साहू जी साहब इस वक्त अयोध्या से। संजय ठाकुर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे लक्ष्मण साहू जी साहब से? मैं तो लक्ष्मण साहू जी साहब से यही कहूंगा कि जो दिल में बसी है, आप वहां हैं और इस डिबेट के माध्यम से ये दिख रहा है। लक्ष्मण भाई, एक भगवान के बारे में भजन है, फोक सॉन्ग है, वहां का बहुत मशहूर है। त्रिभुवन विदित अवध जेकर गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। पूरे संसार को पता है कि प्रभु श्री राम का गांव, उनका नाम क्या है, लेकिन जब आप लोग जाके उसके दर्शन कराते हैं, वहां की माटी का दर्शन होता है, तो ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु राम का दर्शन हो रहा है, अनुभूति हो रही है। क्या बात है साहू जी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो एकदम संघ से जुड़े हो, एकदम दिल से जुड़े हो। राम जी के दशरथ जी वहां से वनवास, सीता मैया वहां से निकल रहे हैं जाके, और वो सीन, और फिर वापस आना, अयोध्या में वापस आना, और फिर हजारों साल के बाद बाबर के लोग तोड़ना, वहां के लोगों का संघर्ष 1990 फायरिंग, 1992 में जो हो गया, उसके बाद ढांचा गिरना, आप लोग का संघर्ष, कार सेवकों का संघर्ष, और अभी मोदी जी वापस राम मंदिर पुनर्निर्माण, ये पूरा चित्र आपके सामने से शायद चलता होगा। साहू जी साहब, नहीं साहब, अभी ऐसा है, अभी जिस माहौल है, जो मूड में है, तो अभी आगे जाकर इसका जो समाज के ऊपर जो परिणाम होने वाला है, वो सबसे ज्यादा हम अहम रखते हैं अभी इसमें। क्योंकि इसके बारे में जो गलतफहमियां फैलाई गई थी, वो गलतफहमियां अभी दूर हो जाएंगी पूरी। और अभी ये जो एक भारतीय संस्कृति का दर्शन पूरे दुनिया को होने जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी रखते हैं हम तो राम जी के भक्त हैं, रोज राम रक्षा, हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा हो, राम हमारा भीम रूपी का जो हमारे जो स्तोत्र है रामदास जी का, वो ये तो हम उसमें रोज डूबे हुए। ये आध्यात्म है,
पौराणिकता है, लेकिन इसके साथ समाज जीवन की एक आदर्श जीवन ही है इसके पीछे। इससे ज्यादा खुशी है इसमें कि हम राम का नाम क्यों लेते हैं, राम को क्यों याद करते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं। समाज जीवन, राजकीय जीवन और कौटुंबिक और व्यावहारिक व्यावसायिक जो हमारी रिश्तेदारी है, जो हमारी एकात्मक कुटुंब पद्धति जो भारत की विशेषता है, इसके ऊपर क्या असर होता है, ये सब जाकर अगली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा मैसेज है, ये एक संदेश है, ये मैं मानता हूं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो घटनाएं घटी है उसकी आपने पढ़ी लिस्ट, मुझे मालूम है। हम इतिहास में जाएंगे तो हम भविष्य में क्या चाहिए, इसके लिए आज का ये जो माहौल है ये उसके लिए मदद करेगा। लेकिन लक्ष्मण सौजी साहब, संजय ठाकुर साहब, दोनों, आप दोनों से ये सवाल है, इतने साल जो शर्मनाक तरीके से बीते कि हमारे ही देश में कोई आया, हमारे मंदिर को तोड़ गया, वहां पे मस्जिद बना दी, और हमें ही लड़ना पड़ रहा है उसके लिए कि यार भाई साहब, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि राम जी का मंदिर हमें यहां बनाने दो, क्योंकि राम जी हमारे हैं, आपने मंदिर तोड़ा है। और वही बात अब ये लोग आकर के, कुछ लोग आकर के काशी विश्वनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। संजय ठाकुर साहब, आप बताएं, ये कुछ प्रवृत्ति समझ में आ रही है, आपकी अकल समझ में आ रही है क्या, संजय ठाकुर साहब? देखिए बजाज साहब, ये सीधे सीधे आप अगर समझेंगे, धार्मिक नहीं कहना चाहिए लेकिन धार्मिक हो गया इसलिए कह रहा हूं। एक तरफ आप देखेंगे तलवार के दम पे प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, और एक तरफ से धर्म को बढ़ाना तलवार के नोक पे। और औरंगजेब ने सेकंडों का समय नहीं लगाया था अपने पिता को ही जेल में डाल देने के लिए, सत्ता पे स्थापित होने के लिए, या भाई ने भाई का गला काट लिया सत्ता पे स्थापित होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो प्रभु श्री राम के अनुयायी थे, उन्होंने जब हद पार हो गई, 550 साल तक लड़ते 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 जब परेशान हो गए एकदम, जब उनको लगा कि अब कोई हमारी बात नहीं मानेगा, तब भी हम अपनी जान दे के अपना मंदिर बनवा रहे थे। हमने जान ली नहीं थी किसी की। हमारे कारसेवकों को मुलायम सिंह यादव ने गोलियां मरवाकर सीमेंट की बोरियों में बांधकर सरयू जी में फेंक दिया। तब भी हमने किसी की हत्या नहीं की। अपने प्रभु श्री राम को उनके महल में, उनके घर में, उनके जन्म स्थान पे लाने के लिए भी हमने अपनी कुर्बानी दी थी, अपने लोगों की कुर्बानी दी थी। हमारे हुतात्माओं ने, हमारे राम सेवकों ने, हमारे राम भक्तों ने वहां अयोध्या की नगरी में जाके अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन जालिमों के सामने घुटने नहीं टेके। दूसरी तरफ वो संस्कृति है जो तुरंत गला काट लेती है सत्ता पे काबिज होने के लिए। इस पूरी प्रक्रिया में समझने की बात यही है कि पूरे विश्व को जो संदेश दे सकता है, पूरे विश्व को जो बता सकता है कि जो सबसे ज्यादा सहिष्णु है, पूरे विश्व को जो बता सकता है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना में विश्वास करता है, पूरे विश्व को भगवान राम के आदर्शों को जो बता सकता है, उस आदर्शों को मानने वाली परंपरा की ये राम भक्त और भारत देश सनातन परंपरा की जबरदस्त जबरदस्त। आज लक्ष्मण सौजी साहब, सॉरी प्रदीप जी, लक्ष्मण सौजी साहब, अयोध्या में आप हैं, अयोध्या नगर में, अयोध्या शहर में आपने क्या बदलाव देखा? क्योंकि आप पहले भी जा चुके हैं, इस बार आप आए हैं, तो क्या बदलाव देखा आपने? क्या कुछ नई चीज देखी राम मंदिर के अलावा? बदलाव तो बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है जी, बताएं सर, कुछ उसका विवरण देना। बहुत बड़ी मात्रा है। हम पहले अयोध्या आए थे 1980 में जी, बाद में 1982 में, बाद में 1990 में जी, तो 4-5 बार अयोध्या। इससे पहले जब हमने देखा था 35 साल पहले, उस वक्त के अयोध्या और आज के अयोध्या में बहुत बड़ा अंतर है। आज अयोध्या मंदिर की वजह से सबको, मंदिर का सपना पूरा होने के बाद, मंदिर पूरा होने के बाद एक नया माहौल बन गया है। और ये जो हमारी श्रद्धा का विषय था पूरे भारतवासियों का, तो ये श्रद्धा कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी अंदरूनी हो सकती है, तो उसका पूरा नजारा अभी यहां दिखता है। क्योंकि सिर्फ एक मंदिर बनाने के बाद ये हमारी भारत की अस्मिता थी। हमारे भारत के लोग, भारत के जो शासन करता थे, वो जब विदेशी मेहमान जब भारत में आते थे विजिट के लिए या काम के लिए कुछ भी, तो भारत की पहचान ताजमहल देते थे, गिफ्ट, उनको भेंट वस्तु बोल के जी। तो ये हमारे अस्मिता को ऊपर, और एक बहुत जख्म के ऊपर नमक छिड़कना, ये 50 साल चलता था।
लेकिन अब हमारी अस्मिता, हमारी पहचान राम मंदिर है, इसलिए पूरे दुनिया को मालूम हो गया। और पूरी दुनिया के लोग जब आएंगे तो हाँ, ये बात सही है, इतना लगेगा, इतना पहले से अभी का अयोध्या बदल गया हो। क्या बात है। और ये शहर भी हो जाएगा बड़ा। यहाँ चाहे एयरपोर्ट होने दो, वो बाकी सारी सुविधाएं होने दो, होटल्स होने दो, नदी किनारे होने दो, इनका अलग अलग तरीके से सजाना हो शहर का, ये होने दो, उसकी सुविधा होने दो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ये पूरा बदल होने जा रहा है। सिर्फ मंदिर की वजह से कितने बड़े बदल होते हैं और हमारी अस्मिता कितनी गहरी थी, ये पूरे दुनिया को अभी अयोध्या देखने के बाद समझ जाएगा। ठाकुर साहब, आप सेम क्वेश्चन थे, दो लाइन, तो मैं सोच रहा ये दो लाइन मैं भी जोड़ दूं, बिकॉज आप खुद उनका महिमा गा रहे हैं। लक्ष्मण सावजी साहब, आप अयोध्या में हो, तो दो लाइन ठाकुर साहब हम गा रहे थे, जो आप रघुपते राघवा राजा राम, रघुपते राघवा राजा राम, ओ राजा राम, ओ सीता राम, रघुपते राघवा। जय सिया राम। क्या बात है। जय सिया राम। लेकिन एक चीज है प्रदीप जी, जो अभी लक्ष्मण सावजी साहब ने कहा, जबरदस्त। मैं आपसे जानना चाहता हूं संजय ठाकुर साहब, अभी जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आए थे मैक्रोन साहब, ये शायद पहले किसी देश के राष्ट्रपति होंगे जिनको पहली बार ताजमहल की जगह पर श्री राम मंदिर का मॉडल दिया गया है एज ए प्रेजेंट ऑन रिपब्लिक डे। आई थिंक इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, जो लक्ष्मण सावजी साहब ने कहा। संजय ठाकुर साहब बताएं। देखिए बजाज साहब, ये तो जब से आप अगर ध्यान देंगे तो 2014 से जब से इस देश में सनातनियों की सरकार आई है जी, और एक सनातनी प्रधानमंत्री आए हैं, आपको याद हो अगर, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी गीता दी गई थी, यथार्थ गीता, स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की यथार्थ गीता इंग्लिश वर्जन दी गई थी। जापान के प्रेसिडेंट को भी गीता दी गई थी। हम जिसको अपने आप पे गर्व महसूस होगा, अपनी परंपराओं पे, अपने ग्रंथों पे, अपने विचारों पे गर्व होगा, वो अपने विचार को प्रसारित करना चाहेगा। और आज चूंकि ऐसे समय में आए मैक्रोन जी कि जब हमारे प्रभु श्री राम अपने महल में और हम लोगों के मन मंदिर से जाके अपने मंदिर में विराजमान हो चुके थे, ये एक अच्छा मौका था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस तरह की, जैसे अभी लक्ष्मण भाई ने बताया, ये बताइए ताजमहल ही मिलता था इनको देने के लिए। हमारी इतनी समृद्ध परंपरा, हमारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ, जिसको पूरी दुनिया ने जिसका लोहा मान लिया हो, आप बताइए बता साहब कि गीता से बड़ा क्या कोई व्यापार मैनेजमेंट का कोई शास्त्र है? गीता से बड़ा कोई अर्थशास्त्र है? कि गीता से बड़ा कोई विज्ञान का शास्त्र है? अगर गीता पढ़ के समझ ली जाए तो गीता में ऐसा क्या है जो नहीं है? लेकिन इस देश को जो लोगों इस देश पे लगातार आजादी के बाद से 65 साल तक लगातार राज कर रहे थे, उनको इस परंपरा में विश्वास ही नहीं था। उनको तो इस परंपरा के लोगों के मानसिक तरह से उनको दबा के, अपने प्रधानमंत्रियों से यह बयान करवा के कि इस देश के जितने भी संसाधन है उस पे माइनॉरिटी के लोगों का पहला अधिकार है, मानसिक रूप से ही उनको कुचल दो, वो अपने रोजी रोटी के लिए परेशान हो जाएं, अपनी धर्म परंपरा का गौरव करना तो दूर की बात है। जब इस तरह की साजिश चल रही हो, जब एक तरह अंधाधुंध धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा हो, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? लेकिन अभी तो घर वापसी का चल रहा है सर, सारी परंपरा का बात करते हो, अभी तो घर वापसी का चल रहा है। लेकिन संजय ठाकुर जी, लक्ष्मण सावजी साहब, संजय ठाकुर साहब ने भजन सुनाया, प्रदीप जी ने भजन सुनाया, अब लक्ष्मण सावजी साहब आपकी बारी है। हमसे रह नहीं गया, आप लक्ष्मण सावजी साहब बाहर निकल गए। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब अब आपकी बारी है, अब आप गा के सुनाएं या श्लोक सुनाएं। चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एक बार और सर, वंस मोर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। क्या बात। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम। क्या बात। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वामी रामचंद्रो दयालु नानम जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मजा, पूर्वतो मारुतिर्यस्य त्वं वन्दे रघुनंदनम। क्या बात। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। क्या बात है साहब, क्या बात है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय। आत्मा तृप्त हो गई सर, आत्मा तृप्त हो गई बिल्कुल। आज लक्ष्मण साहू जी साहब और संजय ठाकुर साहब, आप दोनों कार्यरत रहे हैं इसमें। लक्ष्मण साहू जी साहब तो खैर बहुत पहले से ही रहे और उन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। संजय ठाकुर साहब आपने भी। लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब आज की तारीख में, मैं मानता हूं लोग ये कहते हैं कि भाई श्री राम मंदिर को राजनीति से नहीं जुड़ना चाहिए, इसमें इलेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन है तो सही सर, भले आप मना कर दें, है तो सही। लोग जब वोट करने को जाएंगे उनके जहन में राम मंदिर रहेगा। लक्ष्मण साहू जी साहब आप बताएं। नहीं सब बात ऐसी है, इसके ऊपर बहुत तरीके से चर्चा हो सकती है, लेकिन ये विषय के साथ हम राजनीति जोड़ते नहीं है, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं जोड़ेंगे। रोज लोग जब वोट देंगे तो भारत के विकास के लिए वोट देंगे, जो हमने 10 साल विकास के राह पर हमारी जो सरकार चली है, और आगे जाकर विश्वास हम ही दे सकते हैं कि हम विकास कर सकते हैं। दूसरा विश्वास देने लायक कोई दल भी नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाली व्यक्ति भी नहीं है दूसरे दलों में। इसलिए ये विकास के ऊपर वोट मिलेंगे और विकास के ऊपर हम आपकी बार 400 पार जाने वाले हैं सर। क्या बात है साहब, 400 पार। साहू जी साहब, फैंटास्टिक। आपने बोला, हर डेट याद दिला दिया। आपने 80s का बात किया, आपने 90s तक पहुंच गए, 90s तक आप बोले, 1992। मगर क्या माहौल था तभी तो। कोई ठाकुर साहब कोई ये विश्वास भी नहीं कर रहा था कि होगा। हम लोग यही सोचते थे कार से वक्त तो जा रहे, लोग दिल लगा के जा रहे, पर क्या मंदिर होगा, मंदिर होगा। साहू जी साहब आपको क्या लगता था जब आप गए थे इतने साल? 90s में भी गए आप, 1990 में भी गए, 80 में भी गए, 82 में भी गए जी, बराबर है। आपको लग रहा था कि यहाँ मंदिर बनेगा असल में, और आपको देखने को मिलेगा? नहीं, ये पूरा विश्वास था हमारे जनमानस के ऊपर मेरा कि हमको इसकी जरूरत है यार, ये होकर रहेगा, ये पूरा विश्वास था। मेरे ख्याल से उस वक्त एक स्लोगन थी, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये भी एक जनमानस था, लेकिन संघर्ष करना नहीं पड़ा। एक बात भूलना नहीं चाहिए कि हम जब स्वतंत्र भारत में रहते हैं, जब हमारी सरकारें हैं, तो हमारा पूरा जीवन हमारे संविधान को विश्वास लेकर चलता है। हम संविधान के साथ चलकर आज के दिन ये सब मना रहे हैं, ये भी भूलना नहीं चाहिए। जो हमारे ऊपर हमेशा आरोप होते हैं हम संविधान के खिलाफ है, संविधान तोड़ते हैं, लेकिन जिन लोगों ने संविधान का विनाश करने के लिए जो जुटे हुए थे उनके ऊपर ये आरोप नहीं होते। लेकिन हम संविधान के साथ चलकर कोर्ट में से न्यायालय लड़ाई लड़कर आज ये दिन मना रहे हैं, ये भी भूलना नहीं चाहिए। दुरुस्त बात। इसको अनदेखा नहीं कर सकते हम जी। लक्ष्मण साहू जी साहब, संजय ठाकुर साहब आप जरा बताएं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, सर पूरी बात सुन ले। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आदरणीय सम्माननीय मोहन जी भागवत जी, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, अब सिर उठा करके शान से चलने का वक्त नहीं है, सिर झुका के श्री राम की तरह काम करने का वक्त है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा अब मेरी हर एक से विनती है, हर मंदिर के पीछे शिवलिंग मत ढूंढिए, राम राज्य की स्थापना में लग जाइए। संजय ठाकुर साहब अब आप बताएं। बिल्कुल बजाज साहब, देखिए ये सीधा सीधा संदेश है नेतृत्व का और हमारे विचार परिवार के मुखिया का जी, कि भारत की जो आस्थाएं हैं, जो भारत का विश्वास है, भारत की जो परंपरा रही है सनातन, और जिस तरह से राम राज्य की कल्पना की जाती है, प्रभु श्री राम जब आके स्थापित हो गए हैं तो उनके आने से लोगों के चरित्र निर्माण में जो फर्क होगा वो फर्क दिखेगा। तभी तो एक अच्छी तरह से राम राज्य की कल्पना क्या है, जहां पे गरीब दुखियारे के साथ न्याय हो, जहां पे किसी को गलत तरीके से सताया न जाए। आप कल्पना करिए कि अगर न्यायालय का फैसला आ भी गया होता
और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के सुपुत्र की सरकार होती, तो क्या ये राम मंदिर का निर्माण हो सकता था क्या? और अगर किन्हीं परिस्थितियों में हो भी गया होता तो क्या इस तरह से दुनिया देखती क्या? असल में भारतीय जनता पार्टी के मन में कभी इस बात का भ्रम नहीं था, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि आज नहीं तो कल भारत का जनमानस इन लोगों की कुशासन को देख के हमको मौका देगा, और हमको जब भी मौका मिलेगा, हम ये नहीं जानते थे जब ये नारा देते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तब असल में हम भी ये नहीं जानते थे ना कि भारत की गौरवशाली परंपरा में भारत देश की जनता कब हमें ये आशीर्वाद देगी और कब हमको ये मौका मिलेगा। लेकिन हमारे मन में इतना निश्चित था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब भारत की जनता ने हमारे पार्टी पे, हमारे विचार परिवार के लोगों पे अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया और ये लोग सत्ता में बैठे, तो अपने कहे गए वादों को एक एक करके पूरा करके, और पूरा कर देने के बाद अपने पूरे परिवार को हिदायत दे रहे हैं सख्ती से कि जैसे राम राज्य की कल्पना है, जैसे राम राज्य चलता था, विधर्मी जानते हो न जानते हो, लेकिन तुम सब धार्मिक हो जानते हो, और जब उनके सपनों को साकार करोगे, जन जन की सेवा करोगे, दलित को, पिछड़ों को, कमजोर को अगर उसकी मदद करोगे, लोगों के लिए आगे आके काम करोगे, सेवा करोगे, तब राम राज्य स्थापित हुआ, ऐसी कल्पना होगी। और शायद इसीलिए विचार परिवार के मुखिया परम आदरणीय श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने इस तरह के साहू जी साहब मोदी साहब ने उसी दिन कहा, प्राण प्रतिष्ठान के दिन पर, मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर हमको समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण करना होगा। और 1000 साल के बाद लोग इस तारीख को याद करेंगे, इस डेट को याद करेंगे, और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और राम मंदिर का पुनर्निर्माण का वो ना महसूस करेंगे कितना बढ़िया दिन था। साहू जी साहब इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे, क्या विकसित भारत का सपना सही रास्ते पर जा रहा है? नहीं, विकसित भारत का सपना नहीं, विकसित भारत का संकल्प छोड़ा है हमने। संकल्प किया है जो भारत की पहली स्थिति थी सब क्षेत्रों में, वो जो अभी बढ़त मिल रही है, चाहे उद्योग क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे हेल्थ में हो, आरोग्य सुविधाओं में हो, हर एक क्षेत्र में जो हमारी बढ़त हो रही है। और आगे जाकर हमको क्या करना है, ये तो हमारी शिक्षा नीति बदलने जा रही है, जो इतने दिन से हमारे ऊपर आक्रमण कर रही थी विचारधारा के ऊपर, विरासत के ऊपर। इसके लिए शिक्षा नीति में भी मूल्याधिष्ठित शिक्षण पद्धति आ रही है, जो कि बचपन से लेकर हमारी भारतीयता उसमें प्रतिबिंबित होगी, और हर क्षेत्र की बात है। इसलिए विकसित भारत का संकल्प जो हम करने जा रहे हैं, तो सिर्फ मंदिर ये एक उसके लिए हमारी आस्था है, लेकिन उसके साथ सब क्षेत्रों में कि हम पूरे समाज को जोड़ने जा रहे हैं। जहां जम्मू कश्मीर के बारे में जहां अलगाववादी का मन बना रहे थे कुछ लोग, तो अभी जम्मू कश्मीर और भारत एक ही है, ये दिखाया दिया है। जो हमारे नॉर्थ के जो स्टेट्स है, 7 स्टेट, जो उनके दिलों में जो एक अलगाववाद का जो एक मूड था, वो अब खत्म होने जा रहा है। समग्र भारतवर्ष एक हो रहा है, और दुनिया में हमारी विचारधारा स्वीकार हो है। अभी रशिया के भी जो महानुभाव है वो भी हमको मानते हैं, अमेरिका के महानुभाव वो भी हमको मानते हैं, दूसरे देश भी हमको मानते हैं, और हमारे देश की सहायता उनको जरूरी लगती है। तो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी ये जो भारत की प्रतिमा जो बिल्कुल ऐसी प्रकाशमान हुई है, ये कोई विकसित भारत का संकल्प लिए बगैर यह अशक्य था। इसलिए सब क्षेत्रों में चाहे जो न्यायालय व्यवस्था पहली थी उसमें भी जो देरी लगती थी, उसके लिए देरी होनी नहीं चाहिए, इसके लिए भी सोचा जाता है। यानी कि जो हमने इससे पहले एजेंडा पर बहुत बार बोले हैं, अकाउंट से लेकर या गैस से लेकर या आवास से लेकर, ये पूरे गरीब कल्याण का विकास, ये मंत्र लेकर, अंत्योदय का सपना सामने लेकर, अंत्योदय का विचार लेकर, जो दीनदयाल जी की विचारधारा पर हो
या कोई मुखर्जी के हमारे श्यामा जी का सपना हो, या हमारे जितनी पीढ़ियों ने बलिदान दिया है, जितना समर्पण किया है और जितना विचारधारा के ऊपर चले हैं, उनका पूरा जो जिस दिशा में जाना चाहिए था भारत, तो अभी जाकर जो विकसित भारत का संकल्प आगे, जो डिजिटल इंडिया अभी इतना हुआ है कि डिजिटल इंडिया करने पर जो हमको रोक लगा रहे थे कि हम यहाँ अनपढ़ लोग हैं, मार्केट में कैसे चलेगा, लेकिन आज रास्ते पर का एक फली बेचने वाला हो या सेंग बेचने वाला या बलून्स फुगे वाला बेचने वाला हो या रास्ते पर का कोई भी सब्जी बेचने वाला हो, तो पे बोर्ड लेकर बैठता है और उसका करेंसी, उसका व्यवहार, उसका अच्छी तरह से चलता है। ये राष्ट्र के विकास के विचारधारा में और प्रक्रिया में आम आदमी अभी आ रहा है और अभी आदमी को विश्वास हो गया है, और उसका उदाहरण हमारे सामने है, और उसका उदाहरण हमारे सामने है, का संकल्प कर सकते हैं। लक्ष्मण सौजी साहब, उसका उदाहरण हमारे सामने है। आप और संजय ठाकुर साहब दोनों उसी डिजिटल इंडिया के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिना सैटेलाइट के, बिना सैटेलाइट लिंक के, बिना ओबी वैन भेजे। सर पहले पूरा एक तामझाम होता था, पूरा ओबी वैन भेजना पड़ता था, कोई कैमरामैन नहीं है, कोई कैमरामैन नहीं है। ये भी उसी डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आप दोनों को साधुवाद। सही बात है। और सर ठाकुर साहब ये बताए, सावजी साहब ने बता दिया, ये राम मंदिर पुनर्निर्माण के बाद आप तो बोलेंगे कि नहीं हम सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते, हम अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते, मगर सब चीज बीजेपी के लिए अच्छा हो रहा था। वहां ममता बनर्जी हट गए, इंडिया अलायंस फूटने लगा, वहां केजरीवाल हट गए, वहां नीतीश कुमार हट गए, ये धीरे धीरे हट नहीं गए, आ गए नीतीश कुमार आ गए। तो ये अंधविश्वास नहीं है, पर क्या ये राम जी का कृपा है कि मंदिर आपने 550 साल के बाद बनाया, आप हकदार हो, आप हकदार हो। क्या ये एक संदेश है? कैसे देखते हो आप बोलिए बोलिए। देखिए इसमें अंधविश्वास की कोई मुझे तो निश्चित है, ये निश्चित है, मुझे तो वो दिन याद आ रहा है, सर्वविदित है, जी जी एस्टैब्लिश्ड है कि धर्मो रक्षति रक्षित। जो अपने धर्म पे चलेगा, बजाज साहब एक बात समझ लीजिए, धर्म को गलत ढंग से समझते हैं लोग। जो अपने धर्म पे चलेगा उसका कर्म कभी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जो अपने धर्म पे चलेगा वो ईश्वर से डरेगा। जो ईश्वर से डरेगा वो अपने माता पिता की अवहेलना नहीं करेगा। जो अपने माता पिता की अवहेलना नहीं करेगा वो संस्कारी होगा, और जो संस्कारी होगा वही वो इस राम, प्रभु श्री राम के वंशज माने जाएंगे, और हम सब वही हैं। ये तो बहुत सदियों से भारत के पीछे एक साजिश चली आती रही, और हिंदुओं को जो गीता में लिखा गया है, चतुष्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान श्री कृष्ण, भगवान पद्मनाभ लिखते हैं कि 4 वर्णों की संरचना मैंने की है, वो जाति के और जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर। इसको साजिश के तहत हिंदुओं की, सनातनियों की शक्ति को कमजोर करने के लिए बार बार इन चीजों को आगे किया जाता है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जातिवाद पे विभाजन करके हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इन सब कुत्सित प्रयासों को भारतीय जनता पार्टी कभी सफल नहीं होगी, और ये निश्चित है कि प्रभु श्री राम तो हम लोगों के पे तो कृपा पात्र, हम तो कृपा पात्र हैं ही प्रभु श्री राम के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हीं की कृपा से को काल्पनिक समझते हैं, संजय ठाकुर साहब अस्तित्व को नहीं मानते। सर वो विड्रॉ कर लिया था ना एफिडेविट, का है उसके बारे में याद दिला रहे सर वो विड्रॉ कर लिया था एफिडेविट सरकार ने। सब लोगों ने, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपने प्रोटेस्ट किया, सबने किया, दे विड्रू दैट, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मण सौजी साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे उस वक्त, बोलिए कि श्री राम की कृपा से सब कुछ हो रहा है। आपने सर ममता बनर्जी अलग हो गए इंडिया अलायंस से, कहा था, इसलिए मुझे वो याद आ रहा था दीप। तो बोलिए ना, इंडिया अलायंस से ममता बनर्जी अलग हो गई। याद आ रहा था आज की घटना से। आज देखो, ममता बनर्जी गठबंधन अलायंस से अलग है जी। जो नीतीश कुमार जी को जो एक बड़ा क्या बोलते उसको आह्वान करके उन्होंने साथ में लिया था जी। तो नीतीश कुमार जी का आज क्या हो गया आप देख रहे हैं। मुझे नीतीश कुमार जी के आने पर थोड़ा सा बिहार के बारे में थोड़ा इतिहास जागरूक हो गया मेरा जी। तो जब आपातकाल के समय इमरजेंसी जो आंदोलन खड़ा हुआ था वो बिहार से पहले उठा था।
जी उठा था। आदरणीय जयप्रकाश जी नारायण, इन्होंने जो आह्वान किया था और राम मनोहर लोहिया के विचारधारा के सब लोग जब साथ में थे, जी तो अटल जी के साथ आने में, हमारे साथ आने में उनको कहीं भी कुछ कमियां नहीं लगी थी। प्रकाश नारायण जी का स्टेटमेंट था, अगर जनसंघ तो हाँ मैं भी फैसिस्ट हूं। जी तो ये जो विचारधारा की जो लड़ाई चलती थी, लेकिन हम एक दूसरे के विचार के समर्थक कम ज्यादा होंगे, लेकिन आपस में दुश्मनी भाव नहीं था जो आज कांग्रेस ने फैला कर रखा है। मोहब्बत की दुकान का नाम देते हैं, लेकिन सब जगह नफरत फैलाने के लिए ये कांग्रेस वाले बाहर घूमते हैं। तो आज जब नीतीश जी साथ में आए हैं और ये अगला भारत का जो विषय है, इसके ऊपर मोहर लग गई है, ये इतनी आसान बात नहीं है। जी कांग्रेस के साथ हो, लालू जी के साथ हो, उनका जो मूड बन गया अभी भाजपा के साथ आने का, ये अभी 2024 के लिए आसान बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस का जो नकाब ओढ़ा हुआ है, वो दिन ब दिन बहुत स्पष्ट होते जा रहा है उनका चेहरा और उनके इरादे देश के विकास के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व पर भाजपा के साथ सरकार बनाना, ये जो नीतीश जी ने आज कदम उठाया है, या भाजपा ने भी बड़ा मन करके उनको साथ में लेने का तय किया है। जी पहले कह दिया था कि नहीं लेंगे। के विकसित भारत का जो संकल्प है जी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। वंडरफुल। तो सर थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, श्री राम के ऊपर बात हुई, भगवत गीता के ऊपर बात हुई, और आगे चल करके जब मैं उम्मीद करता हूं लक्ष्मण साहू जी साहब, जब आप वापस आएंगे तो राम मंदिर का प्रसाद भी कुछ लेकर के आएंगे और ऑफिस में भी भेजेंगे। लेकर आएंगे, उससे पहले आप अयोध्या आएंगे, ऐसा बोला आपने। मैं तो आ जाऊंगा सर, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन किसी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अयोध्या आएंगे, ऐसा बोला आपने। पक्का मैं तो आने वाला हूं, लेकिन मान लीजिए अगर किसी कारणवश नहीं आ पाया तो आप एक मिठाई का डब्बा जरूर ऑफिस में भेजेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, संजय ठाकुर साहब जय सिया राम, लक्ष्मण साहू जी साहब जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू जी, धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्मण भाई, थैंक यू एवरीवन। सर एक शब्द जाने के पहले, एक शब्द प्रदीप जी के भजन के ऊपर एक शब्द सर, प्रदीप जी ने कहा, बोलिए ना। ठाकुर जी ने उकसाया, बहुत सुंदर बजाज साहब, देखिए वो जो कल्पना है ना, असल में शुरू भी भजन से हुआ था, और जो नाम्बियार साहब कह रहे थे उसका अर्थ भी क्या था, अंत भी भजन से ही कर देते हैं। इतना सुंदर लग रहा था नाम्बियार साहब, ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्लासिकल सिंगर हो और जो रियाज करता हो भजन की। वो करते हैं सर, 3-3 घंटे सुबह उठ के रियाज करते हैं प्रदीप जी। क्या बात करते हो। इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इसलिए अंत भी भजन से ही कर देते हैं बजाज साहब। बोलिए सर, प्लीज प्लीज गो अहेड। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो प्रभु श्याम रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान जी की जय। और साहू जी साहब ने भी लंबा वो एकदम स्रोत लेके, हाय हाय हाय, जबरदस्त, वो जबरदस्त, कमाल है सर, कमाल। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार सर, जय श्री राम। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। थैंक यू सर, हर महादेव, थैंक यू सर, नमस्कार नमस्कार। That was lovely. Fantastic. And now every day Pradeep ji is going to start with a bhajan. Every show he's going to sing something. Now that is a promise. This is really lovely. Now, really truly, you know, the discussion itself was so lovely. Yes. I didn't want to bring in too much of politics into it. Yes. And neither did you. So it is very nice. I mean, after all, what can you say about Nitish Kumar? Because that was spoiled the entire mood. The mood was really lovely. Lakshman Sahu ji sahab, Ayodhya se, हमारे संजय ठाकुर साहब यहाँ से, इकट्ठे करके सब जुड़ गए। राम जी की कृपा है सब, यस यस, श्री राम जी की कृपा है।
और बहुत ज़बरदस्त हुआ। और लक्ष्मण सावजी साहब की तो दाद देनी पड़ेगी, पता नहीं पिछले 50 साल से 55 साल से वो इसी तरह काम कर रहे हैं, जब से वो बच्चे थे तब से काम कर रहे हैं संघ के लिए, और आज भी काम कर रहे हैं, और उतनी ही ऊर्जा उनमें है। और तो और छोड़िए, आज 29 जनवरी है और आज इतनी ठंड में वो वहाँ हैं अयोध्या में, दाद देनी पड़ेगी साहब, बहुत प्रशंसनीय है, ज़बरदस्त है, मानना पड़ेगा, एब्सोल्युटली वंडरफुल, really and truly wonderful. Now the point is, you know, the BJP has got its agenda all set. They know what to do. They know what they are. And by the way, you know, I must say this: these chaps from the BJP and the RSS, they've been talking exactly the same language since 1982, since I met them. 1982 से लेकर आज तक उनकी भाषा में कोई बदलाव नहीं आया प्रदीप जी। मेरा ये कहना है कि अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस को तो अब अपनी रणनीति दोबारा सोचनी पड़ेगी ना। हाउ विल दे डू, you know what they need to do, because their message doesn't seem to be getting across. How will they send their message across? And by the way, what is their message? संदेश क्या है कांग्रेस का, आपको मालूम है क्या प्रदीप जी? क्या न्याय, अब न्याय यात्रा है सर। न्याय जो बोल रहे कि हर 10 साल अन्याय का काल था, अन्याय का जी, 10 साल अन्याय काल है, और इस लोगों के संघर्ष के लिए, न्याय के संघर्ष के लिए हम लोग चल बसे हैं, और कंटिन्यूस जो मणिपुर से शुरू हो गया। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अगर कोई कांग्रेसी हमारे साथ बैठा होता तो बड़ी ऑब्जेक्शन ले लेता, तो न्याय के लिए हम चल बसे हैं, यानी चल बसे हैं, कहने का मतलब ये है। चल आपने चल बसे बोला सर, मतलब स्वर्गवासी हो गए, लेकिन लगता तो ऐसे सैक्रिफाइस। लेकिन प्रदीप जी देखिए, जैसे आपने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि भाई ना दिल्ली में ना पंजाब में आपके साथ कोई तालमेल हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। Yes, sir. No, I think the Congress was delaying it, sir. I mean, anybody who wants an alliance and who wants to get the 68% of the votes together will himself in a hurry to get the seat adjustment. You will be sending his missions to all of these party offices and telling, come let us sit, come let us sit. हमने देखा कांग्रेस में इंटरेस्ट था ही नहीं उनको, वो अपने जोड़ो यात्रा में लग गए तुरंत, बोले कि इनफैक्ट आई थिंक दे फाउंड दैट इनके साथ बैठ के कुछ मतलब नहीं है, हमें अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करते, भले as I say, we aim for the moon and you reach the rooftop, so you'll reach somewhere where at least you're not on the ground. Yes. So I feel so good. If that is the case, I feel so good, because I've been saying it right from the time when the India Alliance was announced, that the Congress is wasting its time here. Exactly. You know, rightfully speaking, they should be standing alone, they should be fighting alone, and they should be seen as the one party that can actually oppose the BJP and nobody else. Within the India Alliance, the Congress message would have been lost. आप देखिए ना, ममता बनर्जी, the way she is treating the Congress, अरविंद केजरीवाल जी वो तो कहते हैं जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हमें आपसे क्या लेना देना है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, सर वो 9वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण करी है बतौर मुख्यमंत्री की भूमिका में, 9th टाइम। और जैसा प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल बीजेपी के साथ रहे, तो मतलब रहा क्या आप? सर, व्हेन वी सी ऑल द पॉलिटिशियंस अराउंड अस, हमको एक ही चीज लग रहा है कि एवरीबॉडी इज जस्ट एन अपॉर्चुनिस्ट, एवरीबॉडी सत्ते में रहना चाहिए और लोगों को न्याय देने के रीजन से लेके सत्ते के साथ रह जाते हैं। लेकिन प्रदीप जी, ये अगर हम बात करें कि साउथ में, दक्षिण में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, लोकसभा में वहां से उनको सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा सीटें तभी कारगर होंगी अगर हिंदी बेल्ट में, जिसको हिंदी की पट्टी बोला करते हैं, हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं, आई हेट दैट वर्ड पट्टी, हिंदी बेल्ट जो है, वहां पर अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी के किले में सींग लगेगी, वरना नहीं होगा। You need to do well in the Hindi belt. Sir, and even the myth that is being created that Congress has the entire South itself is no, not true. No, it's not. Except Kerala, आपने 15 सीट जीते हैं. Karnataka, you had the same situation where BJP won all the MPs. And it was under a Congress government. And KCR will not align with you. Yes. YSR will not align with you. So where are you? Tamil Nadu, you are the mercy of DMK, Junior Stalin. Stalin. So where is the Congress? When you say you are powerful in the South, where are you? You have a presence. That way you have a presence all over the country. Congress has a presence pan-India. It's the only party. So it's the only party which has an office. You have not capitalized on that. You have not capitalized. No, you cannot say that Kejriwal's victory is your victory.
You cannot say YSR's victory is your victory. The Congress has a You cannot say presence. KCR's victory is your victory. The Congress has a presence in every village, in Everywhere. every panchayat, in every zilla, in every Bilkul, district, in every city, in every Yes, state. yes. That is because of the hard work done by congressmen in the last 139 years. Now, you can't wish that away. But my point is, what took 139 years to build is slowly being destroyed right in front of our eyes. And you need a special talent to do that. Now, let's ask Mr. Suresh Chandra Rajan. I think he's from the Congress and he's with us right now. Suresh Chandra Rajan ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बड़े दिनों के बाद आप जुड़े हमारे साथ, क्या नाराज थे सर, क्या हो गया? हम देख रहे हैं नहीं, फेसबुक नहीं, पे नहीं, संघर्ष सर। इनका। सर चल रहा, आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे थे, क्या बात है, किसी ने मना किया था क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, मुझे कांग्रेस पार्टी ने एक नई जवाबदारी दी है जी। मुंबई में। स्लम जो डिपार्टमेंट है हमारा, स्लम सेल डिपार्टमेंट है, उसका मुंबई का अध्यक्ष बना हूँ। तो Congratulations, प्रोग्राम में sir. मैं थोड़ा सा बिजी था सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ उस प्रोग्राम में आप असल में गरीबों की मदद करेंगे, आप असल जी में सर। गरीबों के साथ खड़े रहेंगे, असल में जो झोपड़पट्टी वासी हैं उनको आप इंसाफ दिलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा होगा। जी सर, एब्सोल्युटली। तो धारावी में आप धारावी के जो भी रेजिडेंट है, स्थानीय नागरिक वहाँ के जितने भी हैं, आप उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको आप इंसाफ दिलाएंगे। सुरेश चंद्र राजन जी। जी सर, जी सर। तो अगला मोर्चा आपका कब है सर धारावी में? मोर्चा तो सर 4 तारीख के आसपास एक मोर्चा होने जा रहा है। कहाँ पे? जो कहाँ पर? धारावी में। धारावी का इश्यूज लेकर ना वहाँ पे एक मोर्चा होने जा रहा है। लेकिन सर बेसिकली आइडिया ये है कि मैं मुंबई के स्लम सेल डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बनने के बाद हम लोगों का ये संकल्प है कि मुंबई में 60% से ज्यादा लोग स्लम एरियाज में रहते हैं। जी, रहते हैं। और इन लोगों के कई सारे इश्यूज है, जिन इश्यूज के ऊपर काम, केवल स्लम में रहने वाला इंसान का घर का ही प्रश्न नहीं है, उसके हेल्थ का इशू है, उसके एजुकेशन का इशू है, उसके नाली का है, गटर का है, रास्ते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अभी 40% बढ़ाई जिसके ऊपर आपने आवाज उठाने का काम किया था। इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर मुंबई कांग्रेस का स्लम सेल डिपार्टमेंट जो है रास्ते पे उतरकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेगा। जबरदस्त प्रदीप जी। और सुरेश चंद्र जी, ऑलरेडी 55% टू 60% हमारे जो लोग हैं वो स्लम में रहते हैं मुंबई में, खासकर मुंबई में। और हमको याद है बजाज साहब हमेशा बोलते रहते हैं 2009 में और उससे पहले भी आपने पूरे मुंबई स्वीप किए थे। कांग्रेस ने हर असेंबली सीट, हर एमपी सीट यहाँ के आपने लिए थे अपने पास। तो एक वक्त आ चुका कि पूरे महाराष्ट्र में आपको कुछ कर दिखाना है तो मुंबई से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। और ये स्लम सेल जो है लोगों को घर दिलाने के लिए, लोगों को अपना हक दिलाने के लिए, अपने जो छत है, जो मोदी साहब बोलते हैं कि छत सबको, तो आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोर्शन है, आप इनको जागरूक कर पाए तो आप आधा काम कांग्रेस के कर पाओगे और कांग्रेस को जबरदस्त रिजल्ट होगा 2024 में। सुरेश चंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपने सही कहा है, क्योंकि मुंबई ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और सालों साल मुंबई ने यहाँ से मतलब बड़ी ताकत के साथ लोगों का काम भी किया है और लोगों ने कांग्रेस को भर भर के प्रेम दिया है। एक समय ऐसा था कि मुंबई के सारी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीता करते थे। तो वक्त आ गया है कि फिर से मुंबई के घर घर में जाके, स्लम में जाके लोगों की जो मुश्किलें हैं उसको समझ लेके उस मुश्किलों को, उन सवालों को सुलझाने के लिए लोगों के साथ आंदोलन किया जाए। सरकार की जो इन स्लम ड्वेलर्स के बारे में जो गलत नीति है उस गलत नीति के ऊपर आवाज उठा के लोगों के मन में एक विश्वास निर्माण करने का काम हम लोग करेंगे। आपने देखा होगा कि मुंबई में कई सारे ऐसे स्लम्स एरियाज हैं जहां पर बिल्डरों ने 10, 12, 15 साल पहले लोगों के साथ एग्रीमेंट किया है, लोगों को ट्रांजिट में शिफ्ट किया है, लेकिन 10-10, 12-12 साल पूरा होने के बाद भी आज भी वो स्लम ड्वेलर्स को उनके हक का घर मिला नहीं है। ऐसे लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनका मकान दिलाने के लिए, उनका घर दिलाने के लिए कांग्रेस का स्लम सेल डिपार्टमेंट रास्ते पे उतरकर आंदोलन करेगा और सरकार की ये जो गलत नीति है उसके खिलाफ भी डटकर सामना करेगा। सर जी, सुरेश चंद्र राजन जी। हाँ प्रदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये 10 साल जो है, जो बीजेपी कह रहा है कि डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये 10 साल में हमने पूरे देश को ट्रांसफॉर्म किया, बीजेपी का कहना है।
राहुल गांधी जी का कहना कि ये 10 साल अन्याय काल था, अन्याय हो गया है, लोगों में अन्याय का एक वातावरण है और लोगों के हक के लिए राहुल गांधी जी ये जोड़ो यात्रा शुरू कर दिया है। बार बार राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि अन्याय हुआ 10 साल, चाहे वो महिला हो, महिला शोषित हो गए हैं, जो ट्राइबल है ट्राइबल के खिलाफ अन्याय हुआ है, जो गरीब है किसान है उनके खिलाफ अन्याय। तो ये संघर्ष यात्रा से क्या 53 से 272 प्लस हो जाएगा सुरेश चंद्र जी, ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं? देखो सर, ये जो कैलकुलेशन जो फिगर आप गिना रहे हैं ना, हाँ, ये फिगर मतलब 250 हो गए, 300 हो गया, 400 हो गए, एक अलग बात है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल के सुनहरे सपने इस देशवासियों को दिखाए थे। लेकिन पूरा देश देख रहा है, देश का आम आदमी देख रहा है कि पिछले 10 साल में लोगों को अन्याय ही अन्याय भुगतना पड़ा है। और आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो के माध्यम से राहुल गांधी जी की ये जो यात्रा निकली है, और उस यात्रा में जो हमारे जो स्तंभ है या जो 5 मुख्य उसके आधारशिल है, उसमें क्या है कि हमारा न्याय की लड़ाई के 5 जो स्तंभ है, उसमें युवाओं को न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, ये जो हमारे फाउंडेशन है इस यात्रा के, इन सारे मुद्दों को लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम में देश के सामने एक सुनहरा अवसर है ऐसा समझते हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम इन 5 मुद्दों को लेकर और कई सारे आम आदमी के जिंदगी के सारे सवाल लेकर देश के सामने उजागर करने का काम करेंगे। लेकिन ये तो बताएं सुरेश चंद्र राजन जी, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन नीतीश कुमार जी तो टूट गए, वो जुड़े नहीं है सर आपके साथ भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद। कांग्रेस तो जोड़ने का काम करती है सर, नीतीश कुमार जी तो टूट के चले गए, ये क्या हो रहा है? ये नीतीश कुमार, राजू जी, नीतीश कुमार का आप भूतकाल देखोगे या नीतीश कुमार का नेचर देखोगे तो नीतीश कुमार के रग रग में इस तरह का दल बदलू या पलटू की जो भूमिका है वो बसी हुई है। ये नीतीश कुमार वही नेता है जिन्होंने कहा था कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह से जान लीजिए। ये देश के और बिहार की जनता को इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट करके बताया था। और उसके आगे जाके इस देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह जी ने कहा था कि मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन आज सिचुएशन क्या है सर? पूरा देश देख रहा है कि इनके जो पलटू और ये अवसरवादी इनकी जो भूमिका है, इस भूमिका को लेकर देश अवगत हो चुका है और ये जनता इन Is he getting a call? Is Mr. Sureshchandra Rajan getting a call or is he? He's calling the All right. So we have been told it's a network issue. We but could see that. सुरेश चंद्र जी सर बोल रहे हैं कि but you know somewhere you need to find reasons within yourself. आप कह रहे हैं कि ममता बाहर गई, नीतीश कुमार चले गए, केजरीवाल मान नहीं रहा है, And even as far as Mr. Akhilesh, कुछ और बोल रहे हैं, and even as far as Pradeep ji, even as far as Akhilesh Yadav ji is concerned, he himself is not very happy with the way Congress is behaving, even though he keeps saying कि हम इंडिया अलायंस में हैं। लेकिन जहाँ तक के सीट शेयरिंग का प्रश्न है, he is not very happy. He says दो सीट ले लीजिए, एक अमेठी की सीट और एक रायबरेली की सीट, और क्या है आपके पास? Sir, I think the whole thing is clear. Congress had focused that हम let us focus on ourselves. That's right. अब कहाँ इनके पीछे घूमते रहेंगे सीट एडजस्टमेंट के लिए? जो होगा वो, and they have done, as you said, they have done the right thing. They have done the right thing. These are all your votes. Mamata Banerjee is your vote. So YSR is your vote actually. KCR is your vote. Sharad Pawar is your vote. आप जिधर जाओ ये सब ये टुकड़े आप ही के जनरल्स थे ना, ये आप ही के जागीरदार थे, ये सब अपने खुद के जागीर लेके बैठ गए। तो it is better from your own. The Congress was like the Mughal Empire. Yes. And when the Mughal Empire became weak, Awadh separated, exactly. Bengal separated, That's what exactly happened. the Deccan separated, yes, yes. राजस्थान के ऊपर आपका कंट्रोल रहा नहीं। बिल्कुल सर। इनफैक्ट उनके बारे में ये कहा जाता था, जो एम्परर शाह आलम थे, कि भाई शाह आलम की जो जागीर है, कहते सल्तनत शाह आलम या दिल्ली ताप पालम, मतलब शाह आलम की जो सल्तनत है वो लाल किले से लेकर दिल्ली से लेकर के सिर्फ पालम एयरपोर्ट तक है, जहां पर पालम है, बस वही है। अब वहीं पर आप सिमट कर रह गए हैं।
तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और उसमें अगर बीजेपी जीतती है, वैसे भी बीजेपी जीतने वाली है प्रदीप जी, मेरा तो ये कहना है। कांग्रेस को तो ये कैलकुलेट करना चाहिए ना, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी पार्टी को बढ़ाइए, कोई हारता है तो हारे। आखिरकार प्रदीप जी आप देखें, किसी के मन में क्या कोई दया भाव थी कांग्रेस के लिए? एग्जैक्टली। कि कांग्रेस जब हार रही थी, आपके सामने लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए और कैंडिडेट खड़े करके आपको हरवाया। तो आई थिंक द कांग्रेस, एज यू राइटली सेड, शुड फोकस ओनली ऑन इटसेल्फ। उसमें फ्रॉम 54 इफ दे आर एबल टू रीच एनीवे बिटवीन 90 to 100, आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक। 90 से 100 तक अगर वो पहुंच जाते हैं, आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक फॉर देम, एंड दे शुड देन प्लान फॉर 2029. जी प्रदीप जी। And exactly, you need to mobilize your जी। people. That is what exactly Rahul Gandhi is doing. जी। No, he thought इनके साथ बैठ के सीट अरेंजमेंट करके कुछ होने वाला नहीं है, because wherever they are powerful, they are saying you got no seats here. आप बात 300 सीट लड़िए, हम उस पर सपोर्ट करेंगे। और जब ममता बनर्जी कह रहे कि you fight 300 seats, we are going to support you. Except Bengal, where is her base? और अगर ममता बनर्जी बाहर जाकर के सपोर्ट नहीं भी करती हैं तो क्या उखाड़ लेंगी? क्या एग्जैक्टली क्या कर लेंगे आप? सो अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अकेली लड़ती है और वहां पर आकर के टीएमसी उनका साथ नहीं देती है, तो आपके कितने वोट है वहां पे? 1 2 3, मतलब 3 वोट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, आपके कैंडिडेट को मिल जाए तो। मतलब ये क्या है? स्टैलिन कहां पर है? वेयर इज ही? Only in Tamil Nadu. Outside Tamil Nadu, and there he wants to fight maximum. I mean, वो तो है ही। So as you said, it is the best thing to mobilize your own forces, mobilize the entire party, get them on board, mix around with them, which is rightfully doing Rahul Gandhi. अपने गाड़ी लेके बस में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है प्रदीप जी, मेरी समझ में जो आ रहा है, डू वी हैव मिस्टर सुरेश चंद्र राजन बैक? आ गए कि नहीं आ गए भाई? कोई है क्या? आ गए? हाँ, सुरेश चंद्र राजन जी, आप नीतीश कुमार जी के भजन गा रहे थे, बड़े उनकी तारीफ कर रहे थे, जरा बताइए, बोलिए सर। वो 18 साल तक राज कर चुके हैं सर बिहार में, 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जिसमें से सिर्फ 3 साल आपके साथ रहे, 15 साल वो बीजेपी के साथ रहे। और बजाज साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में ऐसा है कि किसको भी वोट दो बनेगा नीतीश कुमार, यही चल रहा है, किसको भी वोट दो नीतीश कुमार सीएम बनेगा, नीतीश कुमार जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री। जैसे बाकी स्टेट में वोट जिस मर्जी को जाए, जीतेगी बीजेपी। जी बताएं। मैं वही तो बोल रहा था सर, नीतीश कुमार एक अवसरवादी नेता है जो सत्ता के लिए उनके जो सिद्धांत है, उनकी जो विचारधारा है, ये साइड में रख के केवल अपना खुर्ची बचाने के लिए लोगों के साथ गठ। जी, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम अगेन। हैव वी लॉस्ट हिम अगेन? आई थिंक वी हैव लॉस्ट मिस्टर सुरेश चंद्र राजन अगेन, अनलेस ही इज गेटिंग अ कॉल। उनको टेलीफोन आ रहा है कि वी हैव लॉस्ट हिज नेट। अच्छा, वो बाहर है। अच्छा। लेकिन प्रदीप जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपनी पार्टी को आप बढ़ाइए। एग्जैक्टली। किसी का नुकसान होता है तो होता रहे, उसमें क्या है? आपका नुकसान किया है? इतना ज्यादा लोगों ने आपको 44 सीटों पर आके खड़ा कर दिया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आप 54 सीट पर आए, उसमें से भी एक सीट चले गई, एक स्वर्गवासी हो गए आपके आदरणीय सामान्य लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे। अभी आपके पास 53 सीटें, 53 से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 150 तक हम लोग कैसे आए। 150 तक आप आ नहीं पाएंगे, 100 तक अगर मैं समझता हूं प्रदीप जी, if the Congress is actually able to reach a 3-figure mark, it will be a huge victory for them. It will be a huge victory. Even the Congress does not know how huge it will be. I know this will sound very disappointing to people, but that's the way it works. When you are working yourself up from the ground level up, even 100 seats is huge, is absolutely huge. And these 100 seats, I think, are going to come at the expense of the so-called India Alliance partners. That's what I think. That's what they fear also. So that's what they fear. That the more the Congress goes, it's not going to affect the BJP. It's going to affect the regional parties, because the regional parties are jagirdars of the same Congress. So you're going to revive yourself. The Congress revives itself. It is at the cost of the regional parties like Mamata Banerjee. All the breakaway KCR, factions. YSR. All the breakaway factions of the Congress. बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पर प्रदीप जी एक चीज अपने दर्शकों को याद दिलाना बहुत जरूरी है साहब। 3 स्टेट में, 4 स्टेट, 5 स्टेट में इलेक्शन हुई थी। 3 स्टेट में कांग्रेस हारी। किस में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। तीनों स्टेट में जो कांग्रेस हारी है ना, वहां पे सबसे ज्यादा खुशी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स में थी। भारतीय जनता पार्टी में इतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि मान लीजिए अगर कांग्रेस 4 स्टेट जीत जाती, हे महाप्रभु, फिर तो कांग्रेस को कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण करना, फिर नीतीश बाबू सोचते भी नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना।
अगर ये 4 स्टेट कांग्रेस के पाले में चले जाते, अगर मान लीजिए राजस्थान जीत जाते, मैं कहता हूं 2 भी स्टेट चले जाते, और if they had won in Rajasthan, if they had won in Madhya Pradesh, there is no way Mr. Nitish Kumar would have left the alliance that he was in right now and would have gone with the NDA. There would have been, I mean, there was not a chance that he would have done that. But it is because he perceived the Congress to be weak, he perceived the Congress to be not at all decisive, and he perceived a certain arrogance about the Congress. He said, fine, let's go back. Let's go back to where my political future is assured. क्योंकि प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, आपको याद होगा जेडीयू में हर जगह पर बगावत हो रही थी, लोग उनको छोड़ के जा रहे थे, उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनको सीधा साधा लग रहा था कि ये सब छोड़ करके बीजेपी के पास जा रहे हैं. दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड, वेल थैंक यू वेरी मच. अब बहाना, वो सर कन्वीनर ना कन्वीनर उसका तो बहाना है. Who wants to be the convener of a losing proposition? India Alliance is a losing proposition. Let's be very clear. They're not going to probably thought he will be declared the prime minister candidate on Sapna, because a weak Congress and a disunited front, they would put off, spur up a candidate that is like somebody like Nitish Kumar. Nitish Kumar is very lucky that he was not declared the prime ministerial face of the India Alliance. If he had been, he would have been finished. I think he wouldn't have been able to win his own seat as far as Bihar is concerned. Are we getting Mr. Radhan's back or aren't we? Alright, we are not getting Mr. Radhan's back. I think we'll be getting Mr. Mahmood Deshmukh of the Aam Aadmi Party very, very shortly. But as far as Mr. Radhan is concerned, I think प्रदीप जी महमूद देशमुख साहब और राजन साहब को जो अब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वही काम महमूद देशमुख साहब कर रहे हैं. पहले संभाल लेते हैं पूरे स्लम्स को कोऑर्डिनेट करना, पूरे गरीब बस्तियों को ठीक करना, बस संघर्ष अपने खुद के बल पर कर रहे थे. लेकिन प्रदीप जी एक चीज तो है, सीधी सादी बात है, जहां पर कांग्रेस बोलती है कि वी डू नॉट डिवाइड, वी यूनाइट, यू आर नॉट एबल टू यूनाइट योर ओन एलाइज. सो हाउ कैन यू जस्ट ब्लेम दैट इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया? आपने धोखा देने क्यों दिया? आई मीन इट वाज टोटल योर मिसमैनेजमेंट दैट दीस पीपल हैव गॉन बैक. नाउ व्हेन राहुल गांधी सेड 68% is what we are targeting, this is anti-Modi votes and I am going to consolidate all the 68%. I mean, there should have been so much of meetings, interest taken by the Congress that we are a national party, and he should have sent his emissaries everywhere. टीम बना के इन नीतीश कुमार से मिलो, टीम बना के ममता दीदी से मिलो, टीम बना के वाईएसआर से मिलो, केसीआर से मिलो, जो भी है, सीपीएम से मिलो, सीपीआई. तो it had to be their initiative. And we found who's taking the initiative? Nitish Kumar and Sharad Pawar ji. Now Nitish Kumar comes to Mumbai and meets Sharad Pawar ji and he says we need to forge an alliance. And then Sharad Pawar ji and all come together. I mean, the entire thing should have been begun with the Congress and they should have done it on war footing. सब जगह आपने. So finally what's going to happen is आप कुछ किए नहीं, लोग चले गए अपने काम और मुकाम लेकर. And आप कि वो बेवफा निकले, वो बेवफा, ये भी बेवफा. सभी आप ही के साथ बेवफा क्यों निकलते हैं सर? हमेशा आप ही के साथ धोखा क्यों होता है? ये भी तो सोचिए. लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी एक चीज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप जरा एक स्टेप आगे सोचिए ना. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शरद पवार जी जो हैं वो सिर्फ उनका ध्यान केंद्रित रहेगा महाराष्ट्र पे और उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा. मतलब as far as Sharad Pawar is concerned, effectively it is a loss for Mr. Sharad Pawar as well, because the India Alliance as it exists right now, I'm not sure what it is, because unless and until, as has been stated so many times, the Congress-led India Alliance makes an impression in the Hindi belt, you will not be able to defeat the BJP. क्योंकि बीजेपी की जो दक्षिण में सीटें हैं, they are not going to go down. वो तकरीबन उतनी रहेंगी. आपकी ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, आपको भी उतनी मिलेंगी. आपको याद होगा 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तीनों में कांग्रेस की सरकार थी सर. एच.डी. कुमारस्वामी साहब थे, सपोर्टेड बाय द कांग्रेस इन कर्नाटका. नाउ माय पॉइंट इज, एट दैट टाइम द बीजेपी वन प्रैक्टिकली ऑल द सीट्स. आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? सीधी बात है. आज भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय संगठन है वो बहुत जबरदस्त है साहब.
आपका स्थानीय संगठन कैसा है? मस्ट बी वेरी गुड, ऑल थैंक्स टू मिस्टर डी.के. शिव कुमार एंड मिस्टर सिद्धरामैया। बट व्हाट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जो आपका संगठन है आज की तारीख में वो ना के बराबर है प्रदीप जी। यूपी में वेयर इज द कांग्रेस? The Congress right now has its presence in Kerala and Punjab. In Kerala, there is no BJP. In Punjab, there is no BJP. So That's it. अब ठीक है हिमाचल में है, but you know These are very small states. small state and Even Punjab is a very small state. They only has 10 seats. Yes, yes. So 10 सीटों के लिए आप कितना लड़ लेंगे? How many resources do you want to, isolate only for a small state like Punjab or for Himachal Pradesh? What? Maximum, अभी पहले आपकी 3 के 4 सीटें हुआ करती थी वहां से, अभी ज्यादा ज्यादा 5 सीटें हो जाएंगी, 5-5 हो जाएगा, मतलब आम आदमी पार्टी को 5, आपको 5, या ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी स्वीप कर जाए वहां पे, जिस तरीके से भगवंत मान साहब वहां पे काम कर रहे हैं। I can understand why Mamata Banerjee has left. I can understand why Nitish Kumar has left and why other people. Why KEJRIWAL ji has left? KEJRIWal ji किस लिए? Sir, it was a very generous offer. Pradeep ji, as far as I am concerned, Arvind Kejriwal gave a very generous offer to the Congress party, both in Delhi and in Punjab. In Punjab, Mr. Pratap Singh Bajwa of the Congress party laughed at the offer which was given by the Aam Aadmi party, and so did they in Delhi. But ठीक है, इसका मतलब दिल्ली में फिर बीजेपी आएगी और पंजाब विल बी ए क्लीन स्वीप फॉर द आम आदमी पार्टी। आप रहिए, आप ठंडन गोपाल रहिए, सीधी बात है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को आज पंजाब में कोई छू नहीं सकता साहब। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का जहां तक लोकसभा का प्रश्न है, वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगी प्रदीप जी, क्योंकि एमसीडी के जो चुनाव हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के जो चुनाव हैं वो आम आदमी पार्टी जीतती रहेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी जरा बदलनी पड़ेगी। खैर फिलहाल, फ्रॉम द आम आदमी पार्टी इन मुंबई, अ मैन हु हैज वर्कड टायरलेसली फॉर द स्लम्स, यहाँ के जितने झोपड़पट्टी वासी हैं, जितने गरीब गुरबा लोग हैं, उनके लिए जिस शख्स ने जबरदस्त तरीके से काम किया है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं महमूद देशमुख साहब। महमूद देशमुख साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो इसके नमस्कार। इसके पहले आपको आवाज आ रही है सर? जी सर जी। हाँ महमूद देशमुख साहब, इसके पहले कि हम लोग मुंबई की बात करें कि मुंबई में किस तरीके से प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में आप सब लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। मतलब इंडिया अलायंस तो अब खत्म हो गई ना, मतलब तकरीबन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी चले गए, ममता बनर्जी ने भी कर दिया कि भाई टाटा कर दिया, और दिल्ली में मैं ये समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने मतलब इतनी दिलेरी दिखाई कांग्रेस को ऑफर देने के लिए, और कांग्रेस ने मना कर दिया। मुझे लगता है कांग्रेस तो खैर पता नहीं क्या जाती है, मुझे मालूम नहीं है, ये तो आप बताएंगे, आप पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। महमूद देशमुख साहब बताएं। जी देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया अलायंस खत्म हो गया, ये कहना मतलब एक मतलब जोक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार चले गए तो उन्होंने अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली है। अब ऐसा है कि जो लोग जो सेक्युलर जो फोर्सेस जो थी उनके साथ में जो सेक्युलर वोट है, वो नीतीश कुमार पे भरोसा करेगा क्या? कल तक एनडीए के साथ थे, फिर वो यहाँ पे आरजेडी के साथ आ गए, फिर वापस बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना खुद का अस्तित्व खत्म कर लिया। उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया नीतीश कुमार जी ने। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव सामने है। देखिए कि अभी एक महीने के बाद हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा इलेक्शन का, आचार संहिता लग जाएगी, और उसके सामने अगर ये खेल हो रहा है, ये सारा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उसी का एक हिस्सा है ये जो नीतीश कुमार को उन्होंने ब्लैकमेल करके अपने साथ फिर से मिला लिया। तो मैं नहीं समझता हूं कि उसका कोई असर होगा और इंडिया अलायंस के ऊपर कोई नुकसान होगा। तो और ये आने वाले कल में आपको दिखाई देगा। रही बात ममता बनर्जी की, तो मेरे जानकारी में शायद ममता बनर्जी का ये कहना है, उनको एक कॉन्फिडेंस है कि मैं मेरे बलबूते पे वहां पर सीट निकाल सकती हूँ, और कांग्रेस का ये इशू है, वो कांग्रेस उसके ऊपर उनके साथ में बातचीत कर रही है, डायलॉग्स उनके चालू है, हो सकता है उसमें रास्ता निकलेगा। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के जाने से अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत कुछ बदल हो जाएगा, तो ऐसी कोई बदलाव की कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं समझता हूँ। मगर केजरीवाल जी भी मान तो नहीं रहे, केजरीवाल जी भी प्रेशर कर रहे हैं। जहां दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग वाली बात है, वहां आप में और कांग्रेस में डिस्प्यूट है,
देयर इज अ डिस्प्यूट। और ये सीमित यहाँ पर नहीं है, आप साउथ में देखेंगे वाईएसआर शायद नहीं जुड़ेंगे, केसीआर शायद नहीं जुड़ेंगे, स्टैलिन एक जेन्युइन पार्टनर है, सालों साल कांग्रेस के साथ रहा है, यूपीए के साथ रहा है। बाकी आप भी तो प्रेशर ही कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी भी तो दबाव ही डाल रहे कांग्रेस पे। तो ये अगर अलायंस होता, बिकॉज अभी तक सीट शेयरिंग तो हुआ नहीं, अब तक 2 महीने 3 महीने कभी इलेक्शन डिक्लेयर होगा। नहीं देखिए ऐसा है जी, अभी आपने केसीआर का नाम लिया, आपने वाईएसआर का नाम लिया, तो ये कभी भी मतलब इंडिया अलायंस का या कांग्रेस के साथ में नहीं रहे, ये तो ये एनडीए के साथ में रहे हुए लोग हैं। फिर साउथ में है किधर? साउथ में क्या प्रेजेंस है फिर स्टैलिन को छोड़ के? देखिए साउथ में स्टालिन है, अब कर्नाटक में भी तो कांग्रेस मजबूत है, कर्नाटक में है, साउथ में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है ये आप बताइए ना सर। साउथ में पूरे साउथ में बीजेपी कहीं नहीं है, बल्कि अभी तेलंगाना कांग्रेस के पास आ गया हुआ है। एक तरीके से वहां पे तो साउथ में तो एनडीए कहीं भी नजर नहीं आता है। मगर क्या आपको लग रहा है वाईएसआर केसीआर जब बोल रहे हैं आपके साथ नहीं है, तो किसके साथ है फिर? वो तो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। हाँ तो जाने दीजिए ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसा है, इंडिया अलायंस में वो पहले से नहीं थे, तो अब उनसे उम्मीद क्या करेंगे, वो जहां है वहीं पे रहेंगे। जब केसीआर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, अब तो नहीं है, जब तब थे तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ, मगर जिस प्रकार से केजरीवाल जी का बातचीत है कांग्रेस को लेकर, उसे नहीं लग रहा कि ये गठबंधन के रास्ते पे जा रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हर पार्टी अपने अपने लेवल पे बार्गेनिंग करती है ना। अभी से आप इस मतलब आप जजमेंट मत लीजिए कि मतलब ये अलायंस नहीं होगा या केजरीवाल जी साथ नहीं देंगे। देखिए पंजाब में हमने हमारे बलबूते पे सत्ता लाई है ना, 92 93 सीट्स हमारे वहां पे है। हमारा काम है, पंजाब में हमारा काम बोल रहा है, तो हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि भाई हम हमारे बलबूते पे चुनाव लड़ ले। जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस क्या हमको मतलब सीट शेयर में मतलब पार्टनर बनाएगी क्या? नहीं बनाना चाहेगी। तो ये कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है जहां जिसकी ताकत है। देखिए एक फार्मूला ये तय हुआ था कि भाई जिसकी जहां ताकत है उसको वहां पे इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। तो हमारा पंजाब और दिल्ली में हमारी अपनी ताकत है। दिल्ली में हम 3 बार के मतलब सत्ता में, हम 3 बार में सत्ता में आए हुए लोग हैं। पंजाब में हमने अपने बलबूते पे सत्ता बनाई हुई है। तो जहां वहीं पे हम मांग रहे हैं ना कि भाई यहाँ हमारी ताकत है, तो यहाँ पे हम हमारे बलबूते पे लड़ेंगे। बल्कि कांग्रेस ने बड़ा दिल करके ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है पंजाब और दिल्ली में आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अगर ममता जी मतलब वेस्ट बंगाल में कहती है तो इन्होंने कहना चाहिए कि आप वहां आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये कांग्रेस को सोचने की जरूरत है सर। जी दुरुस्त बात है। सोचेंगे कब? वक्त का है, अब वक्त का है सोचने का। 2 महीने में चुनाव है। अब राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा, ज्यादा वक्त लगेगा उसी में, और उसी में कांग्रेस अपने मोबिलाइज करके कंसोलिडेट कर रहे हैं पोजीशन। मगर हम लोग बजाज साहब हम लोग चाहते हैं कि 53 से लेके जो थोड़ा बहुत है आप 270 तक पहुंचे, तो ये अच्छा फाइट हो जाता, बीजेपी को अच्छा फाइट हो जाता। मगर हम भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, पूरे पब्लिक देख रहे हैं, पूरे जितने ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है वो देख रहे हैं कि कोई संघर्ष नजर नहीं आ रहा। 53 से लेके 270 तक हम लोग कितने भी जोड़े और जुड़ नहीं रहा है फिगर। नहीं मुझे आप बताइए सर, सुनिए प्रदीप जी। हाँ। आप मुझे बताइए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ेगी या घटेगी? उतनी आएंगी गुजरात के अंदर, दिल्ली में उतनी आएंगी, जितनी पहले आई थी उतनी आएंगी। यानी लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी सर। बीजेपी सारी सीटें जीतेगी सर, मेरा अनुमान है। ये आपका अनुमान है? अनुमान है सर, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर समझौता नहीं होता तो आप दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे। अगर आपका समझौता हो जाता है तो फिर कोई बात बनती है। हमारा समझौता होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हमारा समझौता होगा। दिल्ली में 7 सीट हम जीतेंगे, हरियाणा में भी हम जीतेंगे, पंजाब में भी हम जीतेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं हमारा लॉस कहीं नहीं है। आज बीजेपी गुजरात में लॉस होगी, बीजेपी राजस्थान में लॉस होगी, बीजेपी को मध्य प्रदेश में लॉस होगा। माइनस तो इनका होना है, क्योंकि जो इन्होंने 100 एंड लास्ट टाइम जो है 25 के 25 सीट जीत गए गुजरात में, राजस्थान में 26 जीत गए।
आज ऐसा है कि यहाँ पे बढ़ने, सीट तो बढ़नी नहीं है इनकी, बल्कि कम होगी। और सर पिछले हमारा जो साल, है, पिछली इंडिया बार जब अलायंस चुनाव में- हुए, एक सेकंड, पिछली बार जब चुनाव हुए 2019 में, भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटें जीती दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी को 56.9% वोट मिले, यानी तकरीबन 57% मिले। कांग्रेस को 22.5% मिले और आम आदमी पार्टी यानी आपको 18.1% मिले। अगर हम कहते हैं कि उतने ही अगर वोट वैसे के वैसे भी रहे तो भी आप भारतीय जनता पार्टी से आगे नहीं निकलते। फिर भी आप जो हैं तकरीबन 44% पर ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 57% वोट मिले सर पिछली बार दिल्ली में। तो ऐसा अगर आप कहा साथ तो में भी आ जाएं, अगर आप लोग साथ में भी आ जाएं तो भी आप बीजेपी का वोट परसेंटेज पिछली बार जो मिला था उसको क्रॉस नहीं करते। सर बताएं। ऐसा है, 2019 के बाद में बहुत सारा मतलब ब्रिज के नीचे से पानी बह गया है। उसके बाद ही हमने एमसीडी उनसे खींच के ले लिया है। आज दिल्ली के अंदर 2019 के मुकाबले में दिल्ली में हम काफी मजबूत हुए हैं। एमसीडी के माध्यम से भी बहुत ज्यादा अच्छा हम काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 10,000 का मतलब हम लोग वहां पे मतलब आईसीयू बेड ये करने जा रहे हैं। 16,000 आईसीयू बेड मतलब बनेंगे, है ना, मतलब हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं। आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में अगर काम अच्छा हो रहा होगा तो वो दिल्ली में। तो आप 2019 को 2024 से कंपेयर मत कीजिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज की तारीख में 19 का मसला अलग था और आज 2024 के अंदर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और मुझे उम्मीद है अगर कांग्रेस अगर साथ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, हम साथ उनके साथ सीट हम जीतेंगे। सर जहां तक के दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस और एमसीडी का प्रश्न है, वहां पर कोई भी आम आदमी पार्टी का हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि दिल्ली की जनता जो है वो लोकसभा में आम आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं देती, मुझे मालूम नहीं है। पंजाब में देगी। नहीं सर, अभी बदलाव आएगा ना, अब बदलाव आएगा। चलिए, आपको हमारी शुभकामनाएं। आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए साहब। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही बदलाव होता है, लोकतंत्र का मतलब ही बदलाव होता है। अगर बदलाव नहीं आएगा तो मतलब लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। सीधी सादी बात है। नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है जी, परिवर्तन संसार का नियम है। 2024 में लोग परिवर्तन करके दिखाएंगे जी। क्योंकि आपको पिछली बार 2020 में, देखिए साहब, 2019 में, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, द आम आदमी पार्टी गॉट जस्ट 18.1% ऑफ द वोट इन द लोकसभा इलेक्शन। सिर्फ 18% वोट आए थे उनके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे की पूरी सारी सीटें जीत गई थी साहब। भारतीय जनता पार्टी वन ऑल द सीट्स। तो मेरा यह कहना है कि उसी 2020 में वही आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिले एंड दे वन 62 सीट्स एक साल के अंदर अंदर। मतलब दे वन 62 सीट्स, बीजेपी वन 8, कांग्रेस को एक भी असेंबली सेगमेंट में जीत नहीं मिली। एक भी सीट नहीं है कांग्रेस की इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी के 8 हैं। अब खैर आम आदमी पार्टी की शायद 61 रह गई हैं, क्योंकि जैन साहब उस तरफ चले गए। हमारे जैन साहब जो हुआ करते थे, आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन बन गए हैं और सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ। तो ये आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि भाई ये क्या बात है कि लोकल इलेक्शन में आप जीतते हैं, लोकसभा इलेक्शन में आप नहीं जीतते। ये आपको जरा सोचना पड़ेगा। दोनों बार हुआ है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं ये क्योंकि ये दोनों बार हुआ है। इसके पहले भी 2015 में भी हुआ और 2020 में भी हुआ। महमूद साहब, नहीं ऐसा है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि 2020 के पहले एमसीडी हमारे पास नहीं थी। लोग ये कहते थे कि भाई 15 साल से एमसीडी में बीजेपी बैठी है तो एमसीडी आएगी, लेकिन एमसीडी भी हमने भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खींच लिया है। लोगों ने काम देखा है, लोग काम देख रहे हैं। और अब जब असेंबली में लोग काम देख रहे हैं, विधानसभा का काम देख रहे हैं, राज्य सरकार का काम देख रहे हैं, कारपोरेशन का जब काम देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग ये देखेंगे और सोचेंगे और लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेंगे, जिताने का काम। तो अभी मुंबई का क्या सर, ये बताएं। अभी मुंबई में आते हैं वापस, अपना शहर है, आपका भी, मेरा भी, प्रदीप जी का भी, हम सबका शहर है। हमारे ज्यादा दर्शक जो हैं, सबसे ज्यादा दर्शक जो हैं मुंबई के ही हैं। दिल्ली में भी हैं, थोड़े बहुत हैं इधर उधर, लेकिन मुंबई के दर्शक सबसे ज्यादा देखते हैं उनको। तो सर अभी मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने एक नया स्लम सेल बनाया है, उसके सुरेश चंद्र राजन जी हैं, वो देख रहे हैं उसको। अब वो कहते हैं कि वो न्याय दिलवाएंगे सारे स्लम डवेलर्स को।
वो कहते हैं कि पिछले 15 साल से 20 साल से उनको न्याय नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो भाई मुझे तो जहाँ तक याद है कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे 1999 से लेकर के 2014 तक, तो वो 15 साल उनकी सरकार क्या कर रही थी ये तो आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा महमूद देशमुख साहब। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो क्या है वो स्लम सेल जो है वो न्याय दिलवाएगा स्लम डॉलर्स को? बजाज साहब, एक अच्छा मजाक है, जैसे अभी आप भी जानते हैं और मैंने तो कांग्रेस को नजदीक से मैंने भी देखा है। अरे आप थे वहीं पे, आपने देखा क्या है? आप तो उसके विक्टिम रहे हैं सर, आपके खिलाफ तो न जाने कितनी साजिश हुई है। बस आप इसके गवाह हैं जी। बरोबर है जी जी। तो कैसा है ना, पहली बात तो ये जो महाशय जो आए हैं स्लम सेल के अध्यक्ष बनकर, ये उन बातों से शायद अनजान होंगे। इनसे पहले ये कहिएगा कि ये जो स्लम डेवलपर्स की बात आप करते हो, न्याय दिलाने की बात करते हो, तो जुल्म करने वालों की भी जो फहरिस्त है ना वो पहले चेक कर लो, उसमें आपके ही लोग ज्यादा नजर आएंगे। आज मतलब कांग्रेस ने वाकई देखिए झोपड़पट्टी, ठीक है काम अच्छा हुआ है, मैंने कहा कई काम मतलब अच्छे भी हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उजाड़ने का जो काम हुआ है या तकलीफ देने का काम हुआ है तो कौन कर रहा है? उनसे पूछिए ना, वो नहीं जानते क्या, या शायद अनजान होंगे। उनके ही लोगों ने मतलब लोगों को तकलीफ देने का काम किया है। आज हमारे बैंड्रा ईस्ट विधानसभा की बात करता हूं, आज भारत नगर को उजाड़ने का काम किसने किया? कृपाशंकर सिंह पालक मंत्री थे, सुन रहे हैं सर? बोलिए। भारत नगर के रहवासी कन्वेंस मांग रहे थे। कृपाशंकर सिंह मतलब इस राज्य के उस वक्त पालक मंत्री थे, उनसे कहा गया था, लोगों ने कहा था कि भाई इस लैंड का कन्वेंस हमारे नाम कीजिए, जो भी चार्ज होगा, जो भी पैसा होगा, हम सब भरने के लिए तैयार हैं। नहीं किया उन्होंने। मुंबई बोर्ड का चेयरमैन बाबा सिद्दीकी रहा, नहीं किया। दत्त साहब आपके एमपी रहे, नहीं हुआ। आज वो दीवान के गले में डाल दिया इन लोगों ने, दीवान के मुंह में डाल दिया सब पूरा भारत नगर। उसका नतीजा आज ऐसा हुआ कि पूरा भारत नगर आज उजड़ रहा है। आज वहां पे अदानी लोगों को उजाड़ने पे लगा हुआ है। चूना भट्टी सांताक्रूज का किस्सा आप जानते ही होंगे। आज भी भारत नगर में लोग परेशान हाल है, इसकी देन है ये। तो ये जो कहते हैं कि भाई हम करेंगे, क्या करोगे भाई? जब सत्ता में थे तब तो नहीं किया लोगों ने। और ये शिकायत तो मैंने ऊपर भी कही दी थी। सुनिए, आज झोपड़ी धारक जो है जाता है, जब परेशान होता है तो किसके पास जाता है? वो किसी नेता के पास जाता है, वो विधायक के पास जाता है, या है ना? अब वो विधायक पहले ही किसी बिल्डर के जेब में बैठ गया होता है, तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, फिर वो पब्लिक की कोई सुनता नहीं है। तो पब्लिक जाए कहां पे? कोर्ट में जाने की उसकी ताकत नहीं होती है। तो गरीब आदमी तो ऐसे ही पीसा जा रहा है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर हम लोगों ने खुद देखा है, प्रदीप जी और मैंने, ये हमारी पूरी नेशन नाउ चैनल में, कि आम आदमी पार्टी अग्रसर रही है तकरीबन हर जगह पे जहां पर लोगों को उजाड़ा गया है और उनको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन नहीं मिला, जहां पर उनका पुनर्वसन नहीं हुआ है, वहां आप ही के लोग, एक तो आप हैं, बाकी अलग लोग हैं, हमारे पाठमुख साहब हैं, बाकी अलग अलग लोग हैं, सब लोगों ने पूरी जी जान से झोपड़पट्टी वासियों की सेवा करी है, वो तो मानना पड़ेगा। और अभी फिर धारावी का क्या स्थिति है सर, वो जरा बताएं अभी महमूद देशमुख साहब। धारावी तो देखिए, अभी आप भी जानते हैं धारावी के बारे में। वो अब अदानी तो सरकार के दामाद है, वो तो अपना काम करेंगे जी। अभी कांग्रेस शायद एक 4 तारीख को वहां मोर्चा, विशाल मोर्चा कुछ प्लान कर रहे हैं। आप तो पार्टनर ही हो इंडिया अलायंस का धारावी को लेकर। देखिए, हम तो विरोध करेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जनता अगर चाहती है, जनता को भी बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा यही कहना है कि सिर्फ हमारे लड़ने से कुछ नहीं होगा। जिनकी लड़ाई है, उस धारावी के जो लोगों की लड़ाई है, उनको भी बाहर निकलना होगा। अगर वो बाहर आएंगे तो लड़ाई मतलब लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर मतलब लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैंने कहा ना कि ये अदानी मतलब ये जो सरकार बैठी है, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, ये अदानी के लिए काम कर रही है।
तो आज आज हम तो सत्ता के बाहर है, हम कितना उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब इसमें लड़ाई के अंदर मतलब कामयाबी मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है भारत और धारावी की जो भी जनता है वो बाहर निकले, रास्ते पे निकले, तो इसके अंदर हमको कामयाबी मिलेगी। आज के तारीख में प्रकाश अंबेडकर जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक नया और टॉल मराठा लीडर जो है एकनाथ शिंदे जी बनकर निकले। ये पूरे जो एपिसोड में, जो रिजर्वेशंस के एपिसोड में, मराठा रिजर्वेशन में एकनाथ शिंदे जी अनटच्ड अनमैच्ड टॉप के मराठा लीडर बन गए। ये सब मराठा लीडर को पीछे छोड़कर वो अपने आप में एक जगह बन गया है एकनाथ शिंदे जी। तो एकनाथ शिंदे जी जगह बन गए मराठाओं का। ओबीसी छगन भुजबल इनके गठबंधन में है देव फडणवीस जी के साथ, अजित पवार जी है। तो आप ये पूरे कैसे देखते हो, कहां बचा दूसरे लोगों को जगह? मराठा इनके साथ, ओबीसी इनके साथ, दलित इनके साथ, ब्राह्मण इनके साथ, तो जगह आपको क्या लग रहा है, कहां आप करोगे क्या? नहीं, आप किस सिलसिले में बात कर रहे हैं ये मैं समझ नहीं। मराठा रिजर्वेशन, मुझे आप लोकसभा मराठा रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, तो ये किसने कहा कि एकनाथ शिंदे लीडर बन के उभरे? वो तो मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज का लीडर बन के उभरा हो। ये पूरी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो वो मनोज जरांगे पाटिल को जाती है, न तो एकनाथ शिंदे जी को जाती है, न तो देवेंद्र फडणवीस जी को जाती है। प्रकाश अंबेडकर जी बोल रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जी का देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, और ये गलतफहमी है। अगर कोई ये कहता है कि भाई ये मराठा समाज का ये नेता है, ओबीसी समाज का ये नेता है, अपने आप को कोई नेता भले लगाए। देखिए, मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, मुझे मालूम है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है, आप समझे। और अगर वाकई में इनके साथ में लोग होते तो मैं समझता हूं जरांगे पाटिल को मुंबई तक आने की जरूरत नहीं पड़ती, एकनाथ शिंदे जी उनको पहले रोक सकते। और अभी भी मैं ये कहता हूं कि मुझे डाउट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे डाउट है कि मराठा समाज के भावनाओं से एक खेला जा रहा है। सिर्फ सामने चुनाव है, ये एक आश्वासन दिया गया है। अब बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी ने इनको आश्वासन दिया है क्या कि हम कब से ये इंप्लीमेंट कब से करेंगे? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। वो एक सीधे साधे आदमी के साथ में सीधे से एक मनोज जरांगे पाटिल जो है एक अच्छा इंसान, एक सीधा भोला भाला इंसान है, और राजनीतिज्ञ नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। उनकी भावनाओं से खेलने का काम ये राज्य सरकार कर रही है, ये मेरा आरोप है। और आप देखते रहिएगा आने वाले कल में खुद मतलब मनोज जरांगे पाटिल कहेंगे कि मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है। ये जगह जगह अफवाहें चालू कर, भारतीय जनता पार्टी की सीए 7 दिनों के अंदर इंप्लीमेंट होने वाला है। अब सीए, अब राम मंदिर, मराठा रिजर्वेशंस, ये सीए, तो आप क्या देख रहे हैं? पूरे इलेक्टोरेट पूरा पोलराइज हो गया है, हो जाएगा ये चुनाव से पहले। सर, ये यही गलतफहमी है। सुनिए, ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कदम पे पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा का जो इन्होंने कार्यक्रम किया, वो भी मतलब शंकराचार्य विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद मतलब इस देश के अंदर जो 4 सर्वोच्च मतलब धर्मगुरु है शंकराचार्य जी, इनका विरोध होते हुए भी उनको साइड लाइन करके इस देश के प्रधानमंत्री वो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, वोटों का पोलराइजेशन करने के चक्कर में। उसमें जब उनको लगता है कि हम कामयाब नहीं होते हैं, वो फिर अलग अलग तरीके के मतलब रूमर फैला के दंगा फसाद करवाने की उन्होंने कई जगह पे कोशिश की है। अब उसके बाद जो आपने सीए की बात की है, सिटीजन्स है ना, अमेंडमेंट एक्ट की जो बात कर रहे हो, तो ऐसा है ना, देखिए उसका मेन बात तो एनआरसी है। एनआरसी जो है वो एनआरसी, पहली बात तो आर्टिकल 14 संविधान का जो आर्टिकल 14 है, ये राइट्स देता है, सभी को समान अधिकार देता है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज ये भेदभाव की ये हर फील्ड में, हर सेक्टर में ये फेल्यूर है, ये गवर्नमेंट फेल्यूर है। ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इन्होंने राम मंदिर का मसला लाया, वक्त से पहले प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा लाया, अब ये एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, एनआरसी के माध्यम से जो है, आपको मालूम है लोग कितने इफेक्टेड होंगे? आज 30 मिलियन लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं इस देश के अंदर, जिनके पास कोई जमीन नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहां से प्रोवाइड कर पाएंगे? 17 मिलियन जो है वो होमलेस है, जो फुटपाथ पे रहते हैं,
कोई ब्रिज के नीचे रहता है, कोई कहीं मतलब रास्ते पे रहता है, जो रैन बसेरा जैसे जगह पे रहते हैं, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आप मुझे बताइए। 150 मिलियन लगभग लोग जो है, जो बंजारा समाज जिसको भटका समाज बोलते हैं, भटकी जमात बोलते हैं, है ना, वो उनके पास तो कोई ठिकाना नहीं, आज इस गांव कल उस गांव है, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको। और खास करके जो मतलब लगभग 80 मिलियन लोग हैं जो ट्रिब्यूनल है, ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, आदिवासी समाज है। अब तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा होंगे, 12-13 करोड़ के ऊपर लोग हैं आदिवासी समाज, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जबकि मूल निवासी, इस देश का मूल निवासी अगर कोई है वो आदिवासी समाज है। आज उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और 1970 का जो सर्वे कहता है, आपको बताता हूं लिटरेसी के मामले में, कि 66% लोग जो है वो इलिटरेट हैं। अगर जो स्कूल ही नहीं गए, तो अगर 1970 के हिसाब से अगर 66% इस देश के नागरिक बच्चे अगर स्कूल नहीं गए, तो उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, स्कूल का सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा। तो सर वो तो 53 साल पहले की बात कर रहे हैं, 53 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, अभी तो उसमें लेकिन आपका कानून क्या कह रहा है? नहीं, आप सुनिए, सिटीजन आपका क्या कहता है, सिटीजन रजिस्टर एनआरसी क्या कह रहा है, 1955 का एक्ट लागू कर रहे हैं ना, 1 जुलाई 1987 के पहले और 1950 के बाद के लोग जो है वो माने जाएंगे। तो ये तो आ रहा है ना 1970 के इसके अंदर सर्वे में। तो आप मुझे बताइए, इतने लोगों को बाहर रख के आप किस तरीके से मतलब एनआरसी लागू करेंगे? तो उनके डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट बनाएंगे फिर, और क्या, क्योंकि हर एक के पास आधार कार्ड तो है ही। बनेंगे डॉक्यूमेंट। सर ऐसा है, देखिए गरीब आदमी पीसा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ मुसलमान को तकलीफ होगी ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू होगा, मुसलमान होगा, दलित होगा, ओबीसी होगा, आदिवासी होगा, ये सभी पीछे जाएंगे। आज मुझे बताइए ना, आज हमने अभी 2 साल 2019 में जब कोरोना आया, कोरोना के समय में हमने देखा है कि लोगों को कितनी मुसीबतें आई, कितनी तकलीफ आई। उस वक्त ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, रेमडेसिविर की दवाई नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गया था, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। तो जो ये बेसिक जो इश्यूज है उस पे काम करने की आवश्यकता है, न कि ये एनआरसी और सीए जैसे मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। ये तो सिर्फ एक ढकोसला है, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए ये हरकत कर रहे हैं, ये ओछी हरकत कर रहे हैं। और इसके अंदर करोड़ों रुपया जाने वाला है, सरकार का भी जाएगा, पब्लिक का भी जाएगा। आसाम में मेरी जानकारी के हिसाब में, आसाम में जो मतलब इन्होंने जो एनआरसी और सीए के बारे में जो इन्होंने सर्वे करवाया था, उसके पीछे 1600 करोड़ रुपया लगभग मतलब गवर्नमेंट का खर्चा हुआ और 8000 करोड़ रुपया जनता का खर्चा हुआ। आप मुझे बताइए, पूरे देश का अगर ये करना है, इनको सेंसस सर्वे करना है, तो इसके पीछे कितना करोड़ों रुपया, कितना लाखों करोड़ रुपया खर्चा होगा। लोगों को अपना काम धंधा छोड़ के मतलब इसके लिए लाइन लगाना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं वोट देता हूं, अब आप नेता बनते हो, इस देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, एक वोट के वजह से अगर वो बनता है, तो हमें जो वोट देने वाला नागरिक है वो नागरिक नहीं कहलाएगा। जिसके पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट के बेस पे वो दुनिया घूमता है, लेकिन आप उसको बोलते हो कि आप नागरिक नहीं हो जी। ये कौन सी मानसिकता है आपकी? हाँ जी, दुरुस्त तो बदल दीजिए। लेकिन इसके ऊपर लेकिन इसके ऊपर अभी बहस होगी सर, इसके ऊपर अभी बहस होगी। जरूर करिए सर। एनआरसी और आर्टिकल 14 ने जो राइट्स दिया है सभी को समान। फाइनली आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट विल हैव द लास्ट वर्ड ऑन दिस। मुझे ऐसा लगता है आखिरी शब्द जो है इसके ऊपर, आखिरी जजमेंट जो है वो उच्चतम न्यायालय की आएगी एनआरसी के ऊपर। बट इट इज समवॉट वरिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें लोगों को फिक्र करने की जरूरत है। जी नहीं सर, लेकिन ऐसा है, एक बात सोचिए ना, आज हमारे देश में एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर आदमी को एक उम्मीद सिर्फ न्यायालय से है, जुडिशरी से है, वो सुप्रीम कोर्ट, बराबर है ना। तो मुझे आप बताइए, ये ब्यूरोक्रेट्स किस लिए बैठे हुए हैं, ये विधानमंडल किस लिए है, ये सांसद, एमएलए, मुख्यमंत्री किस लिए है, ये मंत्रिमंडल किस लिए है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किस लिए है? अगर हर मामले के लिए, अगर इस लोकतंत्र में अगर देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर फेल्यूर है, तभी तो लोगों को मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट फेल्यूर है ना,
पॉलिटिशियन फेल हो जाता है और आदमी को इस देश के सर्वसामान्य नागरिक को अगर इस देश में अगर उम्मीद है इंसाफ की तो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय से है। ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब घातक है, लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच महमूद देशमुख जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि 4 तारीख को जब धारावी में मोर्चा निकलेगा तो शायद आप भी उसमें शरीक होंगे। आफ्टर ऑल ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। उम्मीद करते हैं, उम्मीद कर दुनिया कायम है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। दुनिया कायम है सर, हम और आप कायम है। यस, नमस्कार। नमस्कार। Mahmood Deshmukh Sahab, he's not very happy with the way things are going. Naturally, he's not very happy, especially where the NRC is concerned. In the NRC, the government really has to take a call on what they need to do. But I tell you what, the old conditions that were imposed, I don't think they'll apply anymore, because now everybody has been more or less identified as to who they are, what they are. Everybody has an Aadhaar card, everybody has some form of identification or the other. So I don't think the problem will be that much. And if there is a problem, Pradeep ji, it will be across the board. It will be for everybody. Not just for one class of people. As Mahmood Deshmukh Sahab rightly said, it won't be just the Muslims who are going to be troubled, it's going to be everybody. That's it. So I don't know why people think the NRC is against Muslims. It isn't. NRC is a national register of citizens. We need to know who our citizens are. We are the only country in the world, civilized and democratic country in the world, that does not know what makes a citizen. By the way, the definition of citizen has still not been decided upon as yet. So I hope we have some clarity over there. But at the moment, let's go across to a very, very important issue indeed. It's not just an issue, it's and you would be very familiar with it, Pradeep ji, because you've lived there too. After all, you have worked in Air India. The Air India colony demolition. Now that's created a storm, so to speak. In spite of the fact that the Supreme Court had asked for protection to continue, in spite of that, the allegation is that the new owner, namely Mr. Adani, who's the lessee here, by the way, he's not the owner. The owner of the land is still the state government. It has been leased to whosoever owns MIAL and all the other, subsidiary companies which are involved, who have come in and who have demolished a couple of buildings over there. So let's ask, at the moment we have with us today from Air India, I think, and a person very, very familiar with the entire Air India issue. We have Chow Mikhelan. Chow Mikhelan, very good evening to you. Good evening, sir. Good evening. How are you? So, fine, sir. Thank you very much. So, could you give us an overview, Mr. Mikhelan, on what is going on here? Yeah, actually, if you see recent development on past couple of days back, the Adani people came to demolish our colony. We were surprised because already the case is on Supreme Court. Yes. And previously, whatever petition we filed in Bombay High Court, the Adani and Mial, they have distanced themselves that they have got nothing to do. And even in the recent affidavit filed by Government of India in Supreme Court, they have stated that the land belongs to Air India Asset Holding Limited. So we are very surprised that from where the Adani suddenly cropped up saying that claiming this land to be their own. Gee. And they have come with a huge police force, Huge police force. Yes, huge police force, and there were a lot of people. There was, I think we got some footage of that, which was some footage is there because I think our engineering will just look into it. We saw, yes, that's it. Huge police force was out there with JCB machine, and I'm told that they did manage to break some structures, one or two structures, part structures. What did they manage to do? Yeah, they have suddenly they came and they started breaking. So our people then rushed to that side, and we staged dharna that if you have to break it, you break it over us only. And we are very surprised that despite, police, when they give you protection, when you have got a court order to demolish, you are a government official for demolition, or something means from the government side or the law agency side. Whereas there was no paperwork with them. They had no paperwork, no ministerial order, nothing was there. But then too, there were two full bus of police force who were protecting them. We were surprised that I don't know how come the police is protecting Adani. And one of the senior police officer, he was stating that you are obstructing government work. So we asked him that what government work? Is Adani a government? We don't know. Since when Adani became government, we are very surprised. And they were saying you are obstructing government work. If Adani is a government, maybe.
No, But wait a minute. yes, yes. Didn't the Supreme Court, because the case right now is being heard from the Supreme Court, and Mr. McKellen, the Supreme Court has continued the protection granted to you against Yes. use of force. Yes. They have said everything has to be through the due process of law. Yes. So how did these people have the courage or the gumption to do this? Because this is contempt of court, isn't it? Correct. And that too with full police force they came. And initially when they came, our gate was locked. When we saw police, see, we are being a good citizen, we always respect a law enforcing agency. Then initially we let the police come inside. As soon as the police came inside, behind them all the Adani's machineries and all, they brought it inside. And it was like police was giving them full protection. And then Despite what happened? that, And then what happened? Despite that, then we asked them, we were talking with them, with the Adani people, with the senior police officer on one corner. Suddenly then there one machinery which was stationed near the building, it started breaking. Then suddenly when we saw that it was breaking that building, part of the building, then we all rushed there and we just get out that building, and then we said no, you cannot do like that. When we are having word, finish it word, show us the document, show us what paper you are having. If it is illegal, we don't have any problem. Illegally, don't do it. So They didn't have any paper. Mr. McKellen, they didn't have any paper. did they demolish any building in which people Yes. are still staying, or did they No. demolish only those buildings which are vacant? No, which was vacant. Okay. And No, with did, the- but did they have a but- paper? but- Did they show but- you any paper? No, no paper was there. And in that, what they have violated is that, see, as far as I am a layman, as far as I know, when you come for demolition, then the water supply should be cut off that building. Yes. Electricity should be cut off that building. But neither electricity was cut, neither water supply was cut. And adjacent to that building, people were staying in that one. Suppose when they are demolishing, suppose there is an electrical spark, fire comes out, there was no fire brigade also, fire tenders were also there. If fire comes, already in the main road, construction work is going on. Fire brigade will take time to reach. What about those people who are staying in the adjacent building? They didn't take any safety precaution also. No, we want to know, number one is, you don't have a court order. They said you need to have a court order. The due process of law has to be followed. Now the police accompanies them. Police accompanies them without any court order, knowing very well that this matter is in court and then we need to have a court order. So what are the documents on which did you ask the police on what documents they based themselves that they could come and protect Adani's demolition, which is absolutely illegal, because Adani says that we have touched those buildings which was totally vacant. Nobody was staying there. How far the truth in that? They didn't have any document. They were not able to show the document. That's why later on when we kept on arguing, then they had to leave the place, and they left the place by 8:30. Actually, as per rule, I think demolition can be carried before 6 o'clock in the evening only. But they were very reluctant. We had to argue them to the last. That, see, when you don't have, some senior officer also came, then we made him understand that until unless you have a valid document, you cannot do it like that. Bring us the document, get the document. If you are having document, we don't have any problem. Without document, our society member also cannot allow somebody to simply come and break it. So this police force was from the airport police station or from Wakola police station? Which police station? Wakola police station. Achha, Wakola police station, because this airport area, usually your colony comes under airport, that is Ville Parle, one police station is in the airport. Usually the police force is coming, that is jurisdiction there. That's again the mix-up, how the Wakola police station has come for demolition when the jurisdiction of this is airport police station. I mean, that's what I decipher. How do you see that? Correct. Previously also, when they came, one last time also they came, some 2-3 weeks back. That time also, even we intimated the senior police officer in the Wakola police station, showing him all the documents about the Supreme Court case pendency and whatever verdict was there in the High Court, Bombay High Court, and verdict in the Supreme Court. But I don't know. Now we don't know what is there inside. Commenting that is also not good. But things is not good how it should be. Right, at the moment, Mr. McKellen, at the moment with us, we also have Mr. Santosh Suryavanshi, also from Air India. जी, संतोष सूर्यवंशी साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बताएं क्या हुआ सर उस दिन
कौन सी डेट थी, क्या हुआ, कितने लोग आए, क्या हुआ, बताएं जरा. Actually, sir, there were so many bouncers and police. Bouncers. Wow. Yes, sir. Wow. Gee. And then what happened? Please go ahead. Then, firstly, police officers and the police force came inside our gates, and Yes. again they were followed by bulldozers and Adani peoples and Mial peoples, and they Please go ahead. बोलो, Go बोलो. ahead. बोलिए बोलिए. our peoples, our residents asked them to produce any documents if they are having, but they don't show any documents to us, and they just go erupted, means they just want to demolish at any cost. Just they are in hurry. What hurry they have, we don't know. They want to just vacate the colonies. Despite of the colony case is going on in Supreme Court, we have fought in High Court also, but they are just reluctant to demolish and vacate the colony, evict the colony, and hand over all the land to the Adani peoples or MIA. Right. You know, Mr. Suryavanshi, old Air India colony, new Air India colony, Indian Airlines colony, yeah, मिला के how much area is this and how many buildings are there? I think it is near about 184 acres of the piece of land. 184 plus. Yes. 184 plus acres. Yes. 184 acres, Yes. I think. And how many buildings? Near about 40. It's near about 120 or 140 buildings, I think. Mr. I'm not McKellen, do confirmed you have about any the idea? building How numbers. many? Mr. McKellen, do you have I'm any not idea? confirmed about building numbers. Approximately, I think 140, 150 buildings should be there. Yeah, right. Okay. You And might. so Mr. Suryavanshi, how many people are staying there right now? Near about 400 people are staying, sir. 400. 400 families are staying 400 in the families. colonies. So which means around Yeah. 2,000 people. Yeah, near about, you can say 2,000 people. You know, Mr. Suryavanshi, the Adani group was trying to tell the media that where they went in old Air India colony, there is no one staying there. How far is truth? This 400 families is scattered over the 3 colonies, or it's a new All Air India 4 colony, colonies. or All 4 colonies. all 4 colonies. Acha, the one before the Air India, okay, the new other Air India. So 400 families. Old Air India colony, New Air India colony, then Indian Airlines staff colony, Indian Airlines officers colony. Okay. So 141 buildings around, and now what is the plan? Because this seems to be a contempt of the court. This is a contempt of court. Are you all moving the Supreme Court, telling the court that look what is happening? You have. Sir, we are urging you that you should fight for us, because we are not against the law. We are following totally law. Then we should have justice, and for that we need your help. Exactly. Right. So We have already filed a case in Bombay High Court regarding this demolition, Yes. and tomorrow we got a Yes. hearing, and we got a protection from the Bombay High Court also. In that same, they have got an affidavit from Mial and Adani that they will not do any such kind of thing, repeat such kind of thing again till the hearing is completed. Because we have applied for session court also. In session court, it was turned down. Then finding no other option, we had to approach High Court. and the hearing is tomorrow in the High Court, but you have In interim. High Court, But you have Yeah, interim tomorrow. protection. yeah, So which means they can't come tonight and demolish. yeah, correct. All right. So and in any event, as far as the Supreme Court is concerned, till the pendency of the case in the Supreme Court, they can't demolish anyway. I mean, I don't think so. They can't do anyway. But despite that, they are doing it. I don't know. Yes. Police is giving the protection. We don't know how come and all like that. I hope whosoever your lawyer is in the Supreme Court will argue well. Who is We are very. who is the arguing counsel in the High Court, sir? Mr. Sanjay Singhvi. Mr. Sanjay Singhvi. Yes. Okay, I hope he does a good job, and I hope he gets justice for you. So I'll ask you both one by one. Mr. McKellen, you go first. What do you expect from the court? So, what we expect is, see, basically if you see, now for example, you take my case itself, there are plenty of cases like me. We have came here leaving good private job, few of us has came leaving government job also, assuming that this is also a government company. No one of us thought that this will suddenly become private. That is a differential. Then house, at this juncture, buying a house nearby this locality for 2 crore is not possible from our side. And we have assumed that till my retirement, I will be staying here only. My kids are there.
My daughter sees in 9th standard. Now in this juncture, I cannot move out of the city also. So it's very dilemma. So what we want is, we want to have a accommodation till our retirement. What it was there when we get appointed. As per our service condition, we are supposed to get our house till our retirement. We want our house in retirement. We are not saying that we want to occupy all the 4 colonies. You can adjust us in any one of the colony or half of the colony or somewhere else you can accommodate us. But what we want is, we want a house till our retirement. That's all we want. That is what we are expecting from Supreme Court also, that they will show leniency towards us. Now we came from so far away places, all the people in India who are working, AESL, different companies, subsidiaries, all belongs to all over the India. And what we want is, nobody can afford a house now. They were very good times, Mr. McKellen. They were very, very good times for Air India and for Indian Airlines both. They were very good times. But the only thing over here, before I come to you, I'll come to you, Mr. Suryavanshi, once again. Let me just finish with Mr. McKellen first. Mr. McKellen, the Bombay High Court, in the 3 petitions that you had filed before the Bombay High Court, the Bombay High Court dismissed all of them. The Bombay High Court said, accommodation is not part of your service benefits. That's what they said. Yeah. So you are challenging that in the Supreme Court, right? Correct. We are challenging the dispute. Right. So, अब आप बताइए, सूर्यवंशी साहब, could you please tell us, what do you expect from the court? What do you expect from the court? What do you expect the court to do? In Bombay High Court, we were fighting it for, that is our service condition, and we are fighting for that only. And it is not said by Bombay High Court that it is not our service condition. Adversely, court said to Labour Ministry that it should be considered as a dispute between unions and company, and it should be decided by CGIT whether it is service condition of them or not. That the order given by High Court of Bombay. Firstly, and again they refused to comment on that, and they said no, we have decided that it is not their service condition. Again we approached High Court, and again High Court said that you may consider it again to say that whether it is service condition or not. Both times Government of India refused our dispute to CGIT, and we are asking Supreme Court to intervene and let us see whether it is our service condition or not. It may be decided by CGIT. That's our basic play in the Supreme Court, and we are fighting for that only. And we are not here for being a owner of colony or staff quarters or all the things. We are here to see and say that we want this accommodation till only our retirement. We are not asking anything other than this. And this is our agreement with our company, which have provided us quarters, that you are able to live here in these quarters up to my retirement. That's what I am asking, which has been agreement with our company. That's it. We want this only, nothing else, sir. Mr. McKellen, have they provided any other accommodation, quarters, anywhere else around Mumbai? Has Air India provided you any other accommodation? No, not yet. Not in Mumbai, Navi Mumbai or something like that? There were talk there? No, there's no talk like that. There is no accommodation at all? No. So what do they expect you to do after they demolish the houses you are living in? To go on the street, to set up a tent, sit on the runway? What are you supposed to do? That's what we want to know. Whether they also want us to, illegal occupant or jhuggi jhopari wala, sit down in a bridge near below a bridge, make a tent and stay there with the family, because we have got nowhere to go. So, sir, just to clarify, because we've just received a question. Are you still working for Air India? I am working with AIES. It's a subsidiary company. Okay. And that now belongs to Mr. Adani, or it belongs to Mr. Tata? No, it belongs to Government of India, Ministry of Civil Aviation. It belongs to the Ministry of Civil Aviation. So you are a Ministry of Civil Aviation employee. Yes. So being a Ministry of Civil Aviation employee, you are a government servant. Correct. So how can a deal between a private company and
the Airport Authority of India and the state government apply to you. Your service conditions remain the same. Correct. I'm just trying to figure out. This now even we also don't know. So now you see, sir, when the case is going on, now even parallelly we are facing an eviction procedure also. Yes. From Mial, Adani and Airport Authority. That is, Eviction Mial is the procedure Mumbai from- International Airport Limited, which used to Yes, belong to correct. GVK and which is now with the Adani Group. The Adani Group. And now the Adani Group itself and from Air India. Okay. Yeah. So that eviction procedure has started from the month of July 2023. Now on November 2023, Government of India is giving in one of the affidavit which they submitted in Supreme Court, stating that this land and property belongs to Air India Asset Holding Limited. But whereas the eviction procedure from Adani Group has started in the July 2023 itself. Now we don't understand that when you have started an eviction procedure in July 2023, how come Government of India is giving one of the affidavit in Supreme Court in November 2023, stating that this property belongs to Air India Asset Holding Limited. Now who is what they are telling? It's all very big masala going on. So Air India, the Air India that has started proceedings against you is the Air India Asset Holding Company that has started proceedings. No. The eviction procedure is started by Adani now from July 2023. No, but you said three people have started the thing against you. One is the Adani Group, one is MIAL, which belongs to And one is Adani, and the third you said is Air India. Which Air India? Not Air India, Airport Authority. Airport Authority of India. Okay. AIAI. No, but they all same. They all same. They all the same parent company. That's right. But this Adani, is rather sad. MIL, and airport authorities. Actually, very frankly speaking, Pradeep They are all the same. They are the same agency. Pradeep Now the ji, point I'd like to ask him a question. Just Yes, one yes. second. Both Mr. McKellen and Mr. Suryavanshi. You know, when we heard that Mr. Ratan Tata is taking over Air India, we were so happy. We thought he would really look after all the employees of Air India, the way all Tata employees are looked after. Did you feel the same thing, Mr. McKellen? Very much. Even we were having so much speculation. A lot of my colleagues who went to Air India now, we thought, because up to now, what we know, even Tata Steel, you go for any of the Tata companies, they have been very good with their employee. Yes. Right from accommodation, welfare, means welfare-based company it is, and everybody was expecting that Tata, when taken, your welfare will be taken care of. That's what we They expected. may not be a very good paymaster, but welfare-wise, they are the best in India. That's right, they are. So what happened? When you learnt that you are not under the Tatas, what happened at that time? you were given a 1 year's notice, correct? Immediately when Tata took over Air India, you were given 1 year's time to vacate the premises. Yeah, And correct. that was coercive. Now the point is, now we are worried about the coercive steps that they are taking. Now I've been told that many salaries are being kept on the hold. They have been giving you penalty, penalty deduction from your salaries. Now this is totally against the very norms of service rules. natural justice when the matter is already in the Supreme Court. Now how much truth in that, Mr. Suryavanshi, that penal deductions are going on by huge amounts are being deducted from your salaries? Is it true? Firstly, they deducted some amounts from our salaries, but later on they redeposited in our accounts. So now there's no coercive, payments, deductions, and all those kind of things. No, it is earlier when there was a merger of Air India and Indian Airlines, because of the pay structure difference and all like that, they have deducted our 25% of our salary, which later on, as soon as the disinvestment procedure was going on and it was about to finalize, and after the finalization, they paid that 25% salary cut deduction to all those who are not staying in the colony. They have held back that amount, and still we are not paid for that amount. So all the people who are staying in the Air India colonies, they have been penalized to the tune of 25%. Is that it? Yes, correct. Yes, correct. All right. Everybody else has got it who is not staying in the Air India colony. So Yes. what happens now? Because the Supreme Court will take its time. I hope you win. I hope you get a favorable order in the Bombay High Court. But Mr. Suryavanshi, you didn't answer the question with regard to the Tatas. When you learn Sir, that actually- the Tatas are not going to be your employers, Sir, what happened? actually,
in 2011 itself, we were the part of Air India. Later on, we were transferred to AI Engineering Services Limited, which Okay. was not sold to Tatas. Right. And we are still the Government of India company or government PSC. So rightfully speaking, the government should be protecting you. Yeah, we are asking the same. Government should protect us. Because And both the gentlemen sitting in front of us are government when we employees. were transferred from Tata to from Air India to AI Engineering Services Limited, we were assured that all service conditions, my purse and pay will be protected. Now, where is that protection? I am going to ask. I mean, there's nothing. I think they have been divided, various parts, various subsidiaries have been created. Adani has been given the land. Now, what's interesting is, in case, what is the plan in this huge area that, around this 184 acres of land? Is it, what is Adani's plan? Is it the extension of the hangars, the, maintenance, or Adani is making a mall, Adani is making constructive commercial buildings? Do you have any idea? It may be commercial buildings or the Aerocity like in Delhi. Aero City. Okay. Right. But in terms of expansion of the airport, he says that he needs it for the expansion of the airport. Mr. It is not known, sir. Official it is See, not known. Nothing. Nothing is known. But as far as Mr. Adani is concerned, let's be very clear. Pradeep ji over here, Adani was told that this is not your problem. We will solve the problem for you when he was given the land. So as far as he is concerned, he says, and this is what Mr. Adani says. Mr. Adani says that I am well within my rights because I bought the land or I bought the lease on the land. Actually, the land doesn't belong to him. So he's a lessee. He says he got the lease on the land. So why shouldn't I be able to use that land? Now it's up to the government to decide what to do here. They have to provide Air India employees with alternative accommodation in the same area, or work out a deal with Adani and say, hey, listen, it will take another 10 years or 15 years before the people are allowed to vacate, or something to that effect. Do you think that's likely to happen, Mr. McKellen? Yeah, we do expect the same way. See, now what we practically, if you see, even illegal slum dwellers, when you are rehabilitating that slum dwellers, you are giving them certain houses. So even they are illegal. Although they are illegally staying in slums, they are provided accommodation. We are staying legally. Why can't we be provided? And still it is disputed that whether it is service condition, non-service condition, whatever it may be. But what we know as a layman, see, these are all legal terms and all like that. We don't know this much of legality. What we know is trusting, hoping the government of India, that this company belongs to government of India. We came here, we started a family, we have got kids. Now we will be on the street if we are thrown out of the house. What happens to the school there? There is a school out there. Yes. Is the school also going to be demolished? What is the plan for the school? Yeah, there are two schools are there. They have to demolish. If they are demolishing the colony, they have to demolish the school also. Oh God. So a lot of people all across Kalina are going to have to look for new schools for their children. Oh God. I hope you get a favorable order tomorrow. I hope you are given some more protection tomorrow. Till such time as the government decides. I hope they decide something which is absolutely in the favor of the number of families living over there. There are over 400 or 500 families living there. और 500 परिवार या 400 परिवार जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए कुछ तो विकल्प सोचना पड़ेगा. As Mr. McKellen said right at the beginning of this discussion, that they don't mind being shifted to just one cluster of buildings and the rest Mr. Adani can do whatever he wants with it. So perhaps something like that could happen. I don't know whether or not you would be agreeable to that kind of a situation, or maybe something else in the same area. We don't know. Yeah. But let's see what happens in the Bombay High Court tomorrow. All the very, very best to you. All the very best to you. I hope all of you get a favorable order. Mr. Suryavanshi, Mr. McKellen, thank you very much for joining us. Thank you very much, sir. Namaskar. Thank you very much, sir. Well, that's a real pickle, Pradeep ji. Because I don't really blame Adani. Do you blame Adani? I don't really blame Adani because he's a businessman. No, forget it. I mean, housing is the basic things that you give for your employees.
It's a giant organization. Air India is a giant organization. Yeah, that's not his organization. No, it's not his organization. This is a part of your perks that you give your employees. You have a colony, and your colony that has been for nearly 50 to 60 years out there in existence, and one day you say, I'm going to demolish and put the workers out. Now, I was under the impression that they will create a new township, a colony for Rightfully the employed workers. speaking, Bilkul. what the Air India companies which are owned by the government, I'm talking about the people who are here, what they should have done is they should have created a special purpose vehicle, had a deal with Mr. Adani, and they would have said, okay fine, this particular area is the one where these people are going to stay, and they'll stay for the next 15 years till all of them retire, and in the meantime you develop this area. It can be very easy. The solution actually is very, very easy. They don't require the entire land. They require maybe 10 or 15% of the land. You don't require anything else over there. After all, they are just 500 families. I mean, come on. The point is, Adani, the entire slums, right from Andheri, right from Ville Parle, Santa Cruz, Kurla, Sakinaka. Now this whole property is the airport area which belongs to Adani. Now the point is, among this, you got only this 184 buildings that you're 184 acres that you're talking about, and which had a colony, a proper colony. You can say a proper construction, regularized construction, which houses your employees. Now I'm worried about the future of the entire holistic arrangements you have for the employees. Now are you going to say that no institution going to have colonies for your employees? You're not going to have these kind of benefit for your employees? That's what they say. You have destroyed the entire system and sanctity that you built of creating an employee-employer relationship. So everything is gone. So Nothing it's of gone. that remains anymore. Pradeepji, it's gone. It's Let's gone. be very clear, it's gone. It's really gone. So I don't know where So we are heading. that's what is hurting. That is what is hurting. I don't really know where we are heading, because rightfully speaking, all these people who have been living over there and who have been provided accommodation, and they, by the way, joined Air India and Indian Airlines because they said that they would be given a house. That was the the biggest advantage. हम मुंबई आ रहे हैं और मुंबई के अंदर हमें घर मिल रहा है. मुंबई के अंदर घर मिलना साहब कितना मुश्किल है, सारी दुनिया को मालूम है. जब ये लोग अपनी अलग अलग जगह से छोड़ करके आए एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइंस में, इन सबको मालूम था कि सर्विस में इनको ये बेनिफिट मिल रहा है कि साहब हमें घर मिल रहा है, इसलिए छोड़ के आ रहे हैं. सैलरी कम ली लोगों ने, प्रदीप जी, दे टुक लोअर सैलरीज बट दे स्टेड ऑन in Air India. They are the loyal employees of Air India who did not leave for private concerns. And that's the reward of loyalty. Now, I'm worried about the future of the entire working ecosystem. Are we going to, what are we looking at? The government, the employer has no responsibility of providing even the basic things that was earlier offered to them. No, So- they are bereft of any of these responsibilities. So you will get only you will only get that kind of quality of employees. That's what is going to happen. People whom you really want, who have hell of a lot more to offer to your firm, will probably go somewhere else where these facilities are offered. Which is the reason why you have a huge brain drain in India. People are going abroad. You look at the Google complex, one of the reasons why people love working for Google is because both the chaps, both the founders of Google decided they would look after their employees come what may. Which is the reason why they are still there, which is why Google is Google. That's it. Now, maybe we could have learned something from there. We didn't. Larry Page and Sergey Brin, they said, anybody who works for Google shouldn't have to worry about a house, should not have to worry about where his next meal comes from, And look at Google today, and look at all the other major firms. Look at Apple. Once you join Apple, once you join a company like Apple, you don't have to bother about a house. You don't have to bother about where your kids are going to go to school. You don't have to bother about your lunch or your dinner. That is what earlier Air India was. Yes. People would love to work for Air India. That's right. You had a colony, That you made were it, traveling, you had Pradeep ji, this. that made it one of the top Yes. 3 airlines in the world. Bilkul. At one time, I remember when every airline was running at a loss, Air India was the only airline in the world which was making a profit. And it was internationally competitive. Yes, that's right. It was internationally competitive. Not only was it competitive, it was the most profitable airline in the world at that time. Till you came along, what did you do?
You first merged Indian Airlines with Air India, then you demerged, then you did all sorts of other things. You had ministers coming over here, you had bureaucrats coming over here who looted Air India. This happened. It really happened. And one day, perhaps Pradeep ji will come out with the real truth about Air India. He knows all the inside out of Air India, and we must come out with it. But there's an entire report in the parliament. And Yes, there is, and nobody's looked at it. Nobody's looked at it. No one has looked at it. It's a scam worth over 3 lakh crores, by the way. I can give you that figure. And that figure is about 8 years old, 9 years old. 3 lakh crores is what we're looking at. Today, it would be what? Almost 8 lakh crores? Or thereabouts? Well, I hope they get a good order tomorrow. I hope people don't have to lose their houses, because they have to work and they have to fight too. Because there's nothing worse than losing a house. Right, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. और इसके पहले कि आपसे विदा लें, एक बार फिर अपने कमेंट जरूर भेजें. आज कोई कमेंट्स नहीं ले रहे क्योंकि शो जरा लंबा चला है. वील टेक देम टुमारो. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स लेफ्ट. आप जरूर अपने कमेंट भेजते रहें. सब्सक्राइब करें चैनल को. ये चैनल आपका चैनल है, और जो भी हम सवाल पूछते हैं इस चैनल पर उसका जवाब जरूर भेजें. Today, by the way, was a great day. We had Mr. Lakshman Saji from Ayodhya, and we had Mr. Sanjay Thakur from here, and it was very nice. And we loved hearing Pradeep ji's bhajan. I hope he makes a habit of that, and I hope we hear something from him every day. To come out when he sang. Really and truly wonderful. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सबको हर हर महादेव और जय सिया राम.